नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कौर बजाज यानी RKB और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी साहब फ्रांस के दौरे पर थे। He had a hectic time in France. I mean, the whole day was packed full of events. Absolutely, sir. And signings and meeting with Yes, CEOs and other people. And of course, then he was also the chief guest, a guest of honor at the Bastille Day parade. And then on the way back, he decides to stop over at UAE and His Highness MBZ welcomes him, which is amazing. I mean, that's break of all protocol. The same thing happened, by the way, even in Paris. Paris में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने के लिए एलिजाबेथ ब्राउन जो है अपनी फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर, वो खुद पहुंची मोदी जी की का स्वागत करने के लिए। और इधर तो हिज रॉयल हाइनेस MBZ of the United Arab Emirates, he himself reached the airport to welcome, as he says, his friend Narendra Modi, which is fantastic. सर, आज के तारीख में पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया में बच्चा भी इंडिया इज सिनोनिमस नरेंद्र मोदी. It's more than शाहरुख खान और सलमान खान और everything. India is synonymous with नरेंद्र मोदी. बच्चा भी जानता है मोदी. Who say India? You talk about नरेंद्र मोदी. बच्चा भी जानता है कि मोदी. So Modi and India has become synonymous in the whole world. And India today is, you can virtually a superpower, sir. We are dealing on eye-to-eye contact with US, with France, with Germany, with all the top nations, G7, G20. आप बात करो, eyeball to eyeball देख के बात कर रहे हैं. आज किसी प्राइम मिनिस्टर में वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो नरेंद्र मोदी में है. That's right, and of course it's taken 75 years to get here. Let's not forget that. but that is what the Congress says. It's not overnight. It's not overnight. I'm sure Mr. Modi will be the first to acknowledge that. Let's be very clear. It is absolutely true that the 9 years of Modi have seen a quantum leap in development. And as Mr. Modi himself acknowledges, all the accolades, all the honors that he's getting are for the people of India. लेकिन एक चीज है साहब, आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, NRI जो हैं, उनकी इस प्रकार की मीटिंग्स कभी नहीं ली हैं. ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, USA में, UK में, फ्रांस में, मतलब this is a real first. The grand and glorious welcome, the head of states coming to receive him in the airport. I mean, that was an unprecedented kind of protocol that ever seen. We never saw this kind of clamor for any prime minister of this country the way Narendra Modi has, and people love it to go and receive him from the airports. That's right. But also, it also helps the fact that we are buying 26 Rafale and that is what the Congress says. We are also buying 3 new Scorpion submarines. Yes, but forget the Congress. The fact is, nobody has the time just to welcome you just because you're a friend of yours, just because he's a friend of yours. It is because India has the financial power today, India has the political clout today, that Mr. Modi is being welcomed the way he's being welcomed. You are a 4 trillion economy. India is a $4 trillion economy. Fastest growing economy in the world, and very soon we shall overtake China. We may not be able to overtake the United States for a long, long time, but as far as the Chinese are concerned, at the moment, as you know, more than 150,000 firms, Western firms, have left China. Shanghai is slowly becoming a ghost town. Because do remember, as far as the Chinese were concerned, the Chinese were always manufacturing for the rest of the world. When the rest of the world went through a depression, there was nobody to manufacture things for because there was nobody to buy them. As far as India is concerned, India first manufactures things for itself, for herself. And as far as our market is concerned, हिंदुस्तान की मार्केट कहीं नहीं गई है साहब, क्योंकि हमारी मार्केट हिंदुस्तान में ही है. सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी मार्केट इस वक्त पूरी दुनिया में वो भारत देश में है. 142 करोड़ लोग हैं हम. और प्रदीप जी, एक और चीज और फरमाने लायक है, जो ज्यादातर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और हमारा जो मीडिया है उसके ऊपर गौर नहीं फरमाता है. चाइना में सिर्फ 8 या 9 शहर ऐसे हैं which are developed. The rest of China is in abject poverty, the like of which you have never seen before.
Now, this is something which is slowly being realized by the rest of the world, which is why the next 30 years will be dominated by the India story. And for that, if credit has to be given, it has to go to Mr. Narendra Modi. And Absolutely, sir. I mean, there's and at the moment with us from the BJP, we have Mr. Abhishek Tripathi Sahab after a long time. Abhishek Tripathi Sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार आप लोग को नमस्कार सर, बहुत वंदे समय के बाद मातरम, मौका- वंदे वंदे मातरम मातरम। सर, बड़े भारत दिनों के माता बाद की मिल जय, रहे हैं। जय महाराष्ट्र जी जी जय जी, हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी सर। जय शिवाजी। सर, आप मतलब इस अंतराल में जब हम लोग नहीं मिले तो पता नहीं क्या क्या हो गया। आप देखिए ना, मोदी जी यूएसए गए, जो बाइडेन साहब ने जैसे उनका स्वागत किया, ऐसा किसी और हेड ऑफ स्टेट का स्वागत नहीं हुआ। उसके बाद फ्रांस गए, बैस्टिल डे पे ज्यादातर फ्रांस कभी भी किसी विदेशी डिग्नेटरी को नहीं बुलाता है। नरेंद्र मोदी जी को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया। हमारी खुद की टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट, ओल्डेस्ट रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी, which by the way participated in the First World War, in the Second World War, in the liberation of France. And incidentally, once again, I must repeat this to my viewers, Mr. Modi happens to be the only Prime Minister from India who actually went and paid tribute to the memorial at La Chapelle near Marseille to the fallen soldiers of all the Indian regiments which participated in the First World War. आज तक किसी हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को ये नहीं सूझी कि मुझे जाकर के वहाँ पर हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये सबसे पहला काम जो किया वो नरेंद्र मोदी ने किया। And I think that shows, that really says something, which is absolutely amazing. और फ्रांस के बाद अब यूएई में, ये तो फ्रांस की है फुटेज जो अभी चल रही है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज एलिजाबेथ ब्राउन, the French Prime Minister, breaking all protocol. The French Prime Minister came to welcome Mr. Narendra Modi, breaking all protocol. His Highness, His Royal Highness MBZ, he actually came to welcome Mr. Modi in the United Arab Emirates. तो सर अब मतलब जबरदस्त हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है भारत की छवि जो है हर जगह पर बहुत जबरदस्त हो रही है। त्रिपाठी साहब, राजीव जी, मोदी है तो मुमकिन है, और हम कब से ये बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, क्योंकि जलवाय मोदी और जलवाय भारत पूरे विश्व में जो धूम मचा रखी है। और जहां भी मोदी जी जा रहे हैं, काम का हो, काम के अलावा हो, उनके स्वागत का हो, बाकी हर जो प्रोटोकॉल है उनको जो ताक पे रख के जो उनके वहाँ के लीडर्स उस कंट्री के उनको रिसीव करने आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, और आगे जो काम हो रहा है, आई थिंक ये ऐतिहासिक है। बहुत खुशी होती है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं, और हम हैं ये दिन देखने के लिए अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने सामने। वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो हैप्पी, we're very lucky, we are seeing this. Let's be we're very very clear. lucky that we are seeing our prime minister, Yes. the prime minister of India, being received in such a way in US, in France, in Saudi Arabia, and so many more to come, and many that we've seen in the past. तो ये बहुत कमाल की बात है, एक व्यक्ति इतना काम करता है, इतनी जगह जाता है हमारे देश में फिर विदेश में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं मात्र, उसी में वो भी काम करते हैं, उतना ही टाइम हमें भी मिलता है। तो ये एक चमत्कार है मोदी जी हमारे भारत देश के लिए। ये मात्र एक व्यक्ति नहीं है, एक पूरी तरीके से एक चमत्कार है जिसको इस देश की बहुत जरूरत थी। और 2014 से जो हमें देखने को मिला है, और 19 से जो रफ्तार बढ़ी है, और आने वाले समय में जो हम और देखेंगे, जिसके बारे में शायद अभी हमें ज्ञान भी नहीं है कि क्या क्या चीजें मोदी जी के भारत देश के लिए उनके पिटारे में रखी हुई है, इसको और संवारने में और सजाने में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जियोग्राफिक हो, चाहे वर्ल्ड सिनेरियो में हो। मोदी जी बहुत बहुत ज्यादा कमाल कर रहे हैं। बात सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, बात इसलिए है कि हम भारतीय हैं सबसे पहले। तो एक भारतीय होने लेकिन के त्रिपाठी नाते- साहब, इसमें बीजेपी कहां से आ गई? मैं तो सीधी वही बात मैं बोल बता रहा हूं, इसमें मैंने बीजेपी कहां इसलिए से? बोला, क्या हम तो बीजेपी मैंने- से नहीं है साहब, मैं तो बीजेपी से नहीं हूं। मैं इसीलिए बोला ये चीज, राजीव जी। मैं खुद अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूं। मुझे खुद लगता है कि मेरी छाती 56 इंच की हो गई है ये देख करके। जी। इट्स फैंटास्टिक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। इसीलिए मैंने ये चीज बोला कि बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, बात जी। पूरे देश की है, हर भारतीय की है। और हर वो भारतीय जो विदेश में रह रहा है, जो मूलतः भारत का है पर अभी वहां पर रेजिडेंट है, उन लोगों के लिए घर जो हम देखते हैं जब मोदी जी सड़क पे उतरते हैं, वहां के एक छोटा सा मिनी रोड शो करते हैं, ताकि वो अपने जो भारत के ओरिजिन के जो लोग हैं उनसे मिल सके, उनसे, वहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, उनका परिवार होता है सबका, वो कभी कभी मोदी जी को देख सकते हैं, शायद सदी में एक ही बार देख सके। ये एक ऐसा मौका होता है उनके लिए। तो ये देख के समझ में आता है कि
हम ही सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे हैं, जो वहां पे रह रहे हैं, जो हो सकता है वहां के रेजिडेंट हो चुके हों, सिटीजन हो चुके हों, जी, लेकिन दुरुस्त मूलतः बात। भारतीय हैं, वो उसके बावजूद भी वो लोग पूरी तरीके से उस दिन, उस समय, उस क्षण मोदी जी को देख के इतना गर्वान्वित महसूस करते हैं। आई थिंक इट्स अ प्राउड त्रिपाठी जी, मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस। ये विजिट तो ठीक है, यूएसए जा रहे हैं, यूके गए हैं, और उससे पहले G7, G20, ऑस्ट्रेलिया। मिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। आज जैसे देव फडणवीस जी ने कहा कि मिस्टर मोदी इज क्रिएटिंग द ग्रेटेस्ट और द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द होल वर्ल्ड इन इंडिया, दैट्स व्हाट ही सेड। बट राहुल गांधी जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया, बोले कि the Rafael has got Mr. Modi a ticket to Bastille. Mr. Rahul Gandhi is saying Rafael has given Mr. Modi a ticket to Bastille. That is absolutely, how can even an opposition leader talk about these things where development is concerned? How do you, ये statement कैसा लग रहा है कि सिर्फ राफेल खरीदा इसलिए बैस्टाइल का जाने का मौका उनको मिला? Pradeep ji, I think Mr. Rahul Gandhi should wake up, smell a very good coffee. I think he is down and out. वो रफेल से नीचे उतर आए अब लाइफ में, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा होगा। वो पिछले कई सालों से रफेल रफेल कर रहे हैं, और आज भी मोदी जी के फ्रांस की यात्रा को अगर वो रफेल से जोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम और खरीद रहे हैं वहां से, जो हमारे रक्षा के लिए बहुत बहुत मजबूत होगा आने वाले समय में। पर ये मूर्ख आदमी, ये राहुल गांधी, जिसको पूरा देश पप्पू के नाम से जानता है, जिसके अंदर कोई शर्म नहीं बची हुई है, जिसको ये नहीं पता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या किया है, उस विषय में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? क्या मनमोहन सिंह जब 10 साल के प्रधानमंत्री थे तो ऐसा हुआ था? क्या मनमोहन सिंह जी के पास राफेल खरीदने की सोच नहीं थी? क्या था ऐसा जो अभी सब चीजें हो रही हैं? आखिर एक छोटा आदमी एक छोटी बात करेगा, वो राफेल से उतर आना चाहिए। हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं राहुल गांधी को, फिर वो जाके अलग अलग कोर्ट में, न्यायालयों में माफी मांगते हैं। ये भी प्रत्यक्ष रूप से पूरा देश देखता है, उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। हम टाइम एंड अगेन उनके बारे में बात करते हैं। जो आदमी डाउन एंड आउट है, जो अमेठी से हार चुका है 2019 में श्रीमती स्मृति ईरानी जी से, जो उनकी बहन प्रियंका गांधी उसी चुनाव में कुछ दिन पहले बोली थी कि हु स्मृति ईरानी। तो आई थिंक दिस पीपल शुड वेक अप, you have a good bath, a clean from a river Ganga probably, or clean themselves in every possible way, come down to the level of what Indian think at least. आई थिंक ये हवा में पैदा हुए हैं, हवा में पले बड़े हैं, ये हवा में जिंदगी जी रहे हैं। इनसे ये देखा नहीं जाता कि भारत अब जनता के हाथ में है, पहले एक परिवार के हाथ में होता था। और त्रिपाठी साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो अभी जो 26 रफाल खरीदे गए हैं, बाय द वे उसमें जो करार हुआ है 51% ऑफ द पार्ट्स आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ये भी बताते हैं 51% ऑफ इट इज गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड नंबर 2, द इंडो फ्रेंच डिफेंस कोऑपरेशन, वी आर गोइंग टू बी मैन्युफैक्चरिंग फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अदर थिंग्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो मतलब ये मेरी समझ के बारे है। और दूसरी चीज, जैसी आपके आने के पहले प्रदीप जी और मैं डिस्कस कर रहे थे कि साहब आज की तारीख में चाइना में ऐसी हालत खराब हो गई है कि एक 1.5 लाख कंपनीज चाइना को छोड़ करके भाग गई हैं आज की तारीख में। They've all run away. The Chinese manufacturing has come to a standstill. China used to manufacture for the world, the Western world. The Western world is now going through an utter depression. हर जगह पे उनकी अर्थव्यवस्था जो है तहस नहस हो गई है, किसी को आप पैसा नहीं कुछ खरीदने के लिए। So Chinese have nothing to manufacture for anybody. India, as Mr. Modi has always said, अरे हमारी सबसे बड़ी मार्केट तो भारत है। अगर भारत के लिए ही हम अपनी पूर्ति करते हैं तो हिंदुस्तान वैसी मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। सीधी बात है। मतलब आई डोंट इवन नो वेयर दीस गाइस आर कमिंग फ्रॉम। मैं मानता हूं ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम होता है, विरोधियों का काम होता है साहब क्रिटिसाइज करना, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे वो ड्रोन डील के ऊपर उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और मालूम पड़ा वो किसी और ड्रोन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये सर चीफ स्पोक्स पर्सन ऑल्सो राजीव जी, नहीं सर पूरी बात सुन ले त्रिपाठी साहब, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा। And you were saying on that same day कि आप wrong drone के बारे में बात कर रहे हो। चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठ करके he is otherwise my very dear friend. Let me tell you this, I should not be bringing this up. अरे वो किसी और ड्रोन के बारे में बात कर रहे हो यार। हिंदुस्तान ने लेटेस्ट ड्रोन खरीदा है। अरे मतलब ये पढ़ तो लिया करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आती अभिषेक त्रिपाठी साहब, ये पढ़ते भी नहीं है। त्रिपाठी साहब बताएं। अगर पढ़ लेते तो कहीं पहुंच जाते। पढ़ के तो ये आए नहीं है, जो चमचागिरी करके पहुंचे हुए लोग हैं,
जो पद पाते हैं चमचागिरी करके, उनको कैसे पता चलेगा? आज आपने राफेल का बताया 51% जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, इनको जी। अंदर लाइंस एंड बिटवीन द लाइंस दे डोंट नो, दे ओनली नो एक हेडिंग दिखती है राफेल और उसमें कूदने लगते हैं, एक हेडिंग दिखती है ड्रोन, उसमें कूदने लगते हैं। तो आई थिंक इन लोगों को पढ़ने जैसे कोई बात ही नहीं आती। पढ़ने वाली जैसी बात आती तो आज समझ जाते कि देश 2014 के बाद कहाँ पहुंच गया है ये। और राहुल गांधी तो पढ़ के भी सही नहीं बोल पाते, उनका तो ये है, और वो मोबाइल से कॉपी करते हैं और कंडोलेंस मैसेज लिखते हैं, वो भी गलत हो जाता है कई बार। तो पढ़ने की जहां तक बात है, और इन पे और एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जो फ्रांस में जो इंडियन करेंसी यूज होने का जो जो That is amazing. Oh God, that is amazing. इंडियन करेंसी Absolutely amazing. Come on. यूएई में भी होगा, यूएई में भी होगा ये जी, चीज। yes. और आज ही स्टेटमेंट दिया है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने Yes. कि जितना ज्यादा हो सके इंडियन रुपीस वर्ल्ड में यूज होगा। Same उससे thing for बहुत अच्छा Bangladesh. होगा। And they don't want a border, बोले borderless state हम लोग Sir, करेंगे। बांग्लादेश भूल गए India, आप। श्रीलंका। Bangladesh भूल गए। Bangladesh wants trade only in Indian rupees. Yes, That's yes, it. yes, 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 Amazing, very much. absolutely amazing. अरे सर, सबसे पहला जो शुरुआत होगी अपने यूपीआई की, यूपीआई जो अपना क्या बोलते हैं उसका ऐप जो है, वो आईफल टावर में जो रेस्टोरेंट है वहां से होगी। मतलब दैट्स ब्यूटीफुल, रियली एंड ट्रूली ब्यूटीफुल। आई मीन इसमें क्रिटिसाइज करने का कुछ बनता नहीं है। मतलब ये मेरी और सबसे बड़ी बात ये देखिए साहब, 3 राफाल उड़े भारत वायुसेना के बैस्टिल डे परेड में। 3 Rafales from the Indian Air Force also participated, and all 3 pilots were women. All 3 pilots were women pilots. जो 3 रफाल जो उड़े हैं, और वही पंजाब रेजिमेंट है जिसने फ्रांस को लिबरेट किया था 100 साल पहले, जो आज पार्टिसिपेट कर रही थी, सॉरी 14 जुलाई को, यानी कल पार्टिसिपेट कर रही थी बैस्टिल डे परेड में। तो मतलब ऑल दीज आर मेजर थिंग्स द होल कंट्री शुड अप्रिशिएट इट, वेरी फ्रैंकली। मिस्टर त्रिपाठी, बहुत ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, लेकिन क्या करते हैं जब लोग मैच हार जाते हैं तो बोलते हैं पिच अच्छी नहीं थी, हमारे प्लेयर में इंजरी ज्यादा थी, ऐसा कुछ हो गया था। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का भी यही हाल है, उनसे पचता नहीं है डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। उनसे सिर्फ अपना और अपने परिवार का, अपने खानदान का डेवलपमेंट पचा है, वही कांग्रेसी चमचों ने किया है। लेकिन जब देश का डेवलपमेंट होता है तो यूपीआई सबके लिए है, ये किसी पार्टी विशेष की चीज नहीं है, पूरे देश की चीज है। जब 370 हटा था वो पूरे देश के लिए हटा था, वो किसी के लिए नहीं हटा था। तो ये चीज ये लोग समझ नहीं पाते, इनको तकलीफ होने लगती है, और बहुत ही जाहिल, एक्सट्रीमली इलिटरेट सेट ऑफ पीपल हु प्रिटेंड दैट दे आर वेरी इलिटरेट इन दिल्ली। सर ये सब तो ठीक है, यहाँ तो हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, बल्कि आपसे 10 कदम आगे हैं जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है। लेकिन एक चीज बता दीजिए, ये अजीत दादा पवार साहब कैसे आ गए? मतलब यहाँ, मतलब वो उसमें देश का क्या भला है, वो तो जरा समझा दो सर। मतलब very frankly, I still can't wrap my head around this. How is Ajit Dada Pawar with the rest of the NCP, along with the BJP and along with the Shinde Sena? ये वही है साहब, 70,000 करोड़ रुपए का स्कैम जिसके ऊपर है, आज वो हमारे साथ है। मतलब ये जरा समझाएं सर त्रिपाठी साहब, आप प्लीज। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, अमित शाह जी ने भी कई बार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब जी भी, और मैं महाराष्ट्र में हूँ तो देवेंद्र फडणवीस जी, सबने टाइम एंड अगेन, ऐसा बहुत बार ओवर द पीरियड ऑफ मेनी ईयर्स वी हैव हर्ड दिस बिफोर बाय ऑल दीज लीडर्स, डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स, कि जो भी लाइक माइंडेड होना चाहे, जो भी डेवलपमेंट को लेके हमारे साथ जुड़ना चाहे, उस कि आप विकास करना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि देश को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उस विषय में अगर हम एक हैं और वो आप मानते हो तो आप हमें आ सकते हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़े नेता रहे हैं, जो कांग्रेस के सिंधिया परिवार के, मध्य प्रदेश के, वो भी हमें करीब 2 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे। और ऐसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा था, बड़े बड़े जगहों में हमने देखा था, कर्नाटक में भी देखा है, अब महाराष्ट्र में भी देखा है। क्योंकि देर सवेर कहीं ना कहीं राजीव जी, प्रदीप जी, लोगों को ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। कुछ लोग को लेट समझ में आता है, कुछ लोग को जल्दी समझ में आता है, लेकिन समझने वाला अगर ये चीज समझ गया है कि हमें विकास की राह पे चलना है, मोदी जी के साथ चलना है, तो उनका हमारे यहाँ स्वागत है। और उस विषय से त्रिपाठी जी, आप और पूरे देश बात कर रहे हैं कि इंडिया फ्रांस, इंडिया यूएस, इंडिया यूके एंड एवरीथिंग, बट राहुल गांधी जी याद बार बार दिला रहे हैं कि मणिपुर, व्हाट अबाउट मणिपुर? आज भी राहुल गांधी ने उसी चीज के बारे में बात किया
कि the whole world is talking about Manipur, India is talking about Manipur, but the Prime Minister is not talking about Manipur. Prime Minister is not concerned about the Manipur violence. But the European Union is talking about violence in Manipur, but our government is not acting fine, and Mr. Prime Minister Modi is absolute silence is deafening. You can't be so silent, you're the Prime Minister of the country. Rahul Gandhi ji का कहना है कि Manipur is concerned, BJP and the Prime Minister has not been doing anything. Tripathi Saab. I think this is absolutely rubbish of what Mr. Rahul Gandhi is saying. उनको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री व्यक्ति एकदम खड़े हो जाएंगे वहां मणिपुर पे जाके तभी कोई चीज होगी, ऐसा नहीं होता है. पूरी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, पूरे तरीके से गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी, गवर्नर, वहां के मुख्यमंत्री, सारे जो ऑफिशियल्स हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पूरी तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रधानमंत्री जी के साथ उस समस्या का हल करने में, उसको रोज नॉर्मलसी में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और काफी समय से कोशिश कर रहे हैं. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे गए और चीजें हो गई या उसके बारे में कुछ बोला और वो चीज हो गई. वो समझना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए. इट टेक्स टाइम बिकॉज दे अनरूली बिहेवियर्स व्हिच इज हैपनिंग ओवर देयर. वहां पे एक राइट्स टाइप काइंड सिचुएशन है काफी समय से. तो उस चीज को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय निर्देश देख के, उस पर ध्यान दे के, उस पर नजर रख के उसको उसका समाधान निकालने में लगे हुए हैं. बहुत जल्दी हमें ये चीज पता चलेगा कि वहां पे नॉर्मलसी है. Tripathi Saab, again the Mallikarjun Kharge has informed the whole country today that the inflation rate of India is much more than Russia, much more than US, much more than China. He said the Prime Minister talks about Amrit Kal, but Prime Minister Modi has not been able to contain price rise, inflation, unemployment and various other issues affect the farmers. But आज उन्होंने highlight कर दिया कि महंगाई, we are much more ahead. We are talking about US visit, we are talking about UK visit, we are talking about the French visit, but we are ahead of them where inflation rate is concerned, sir. Inflation rate, well, Mr. Modi has not been able to solve inflation, price rise, unemployment, various these kind of issues. How are you going to say that? आप इसका कैसे justify करोगे? नहीं, जस्टिफाई की कोई बात नहीं होती है. दिस इज व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, एक ब्रॉडर सेंस in terms of handling the economy there is needed. I think वो सारी चीजें प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्रालय, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो सब लोग मिलके कर रहे हैं. कोई ऐसा आके एकदम से आरोप लगा दे कि ये ऐसा हो रहा है, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन. आई थिंक कांग्रेस इज इन्फ्लेटेड completely. I think there's unemployment in Congress, not in the country. It's a very important to understand. Everybody cannot be employed always. ये बहुत ही जरूरी चीज है इस चीज को समझना. You employment happens gradually, over the period of time, as per the people, as per the requirement and all of that. तो ये इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की बात बार बार बाहर लाना या इन्फ्लेशन की बात करना, ये इनकी हार दर्शाता है. आई थिंक दे डोंट हैव अ नॉलेज हाउ टू टैकल थिंग्स. तो उस विषय से ये बार बार क्या है कि 24 बहुत नजदीक है और लाइक माइंडेड लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो बौखलाहट सामने वाले की बढ़ती जा रही है. उनको ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के धुरंधर लोग, उसमें गुलाम नबी आजाद जी भी हैं, वो लोग छोड़ चुके हैं और किनका सपोर्ट कर रहे हैं जग जाहिर है. तो यहाँ पे ये जो बचे खुचे चमचे, द पीटीज, द फैमिली लॉयलिस्ट, ये खाली यही कुछ गिने चुने हैं जो एक कमरे में आके प्रेस के सामने बातें करते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एन आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग, what is written and what is the real situation of the country. Yeah, but the only thing is that as far as the Reserve Bank of India is concerned, they say that as far as the wholesale price index is concerned, which is still at about 4.3%, so which is okay. I mean, it's less than 6%. As far as the overall inflation rate is concerned, historically from 1960 up till 2023, if you measure it, we are still working at around 7% inflation rate, which is fine for a growing economy. Now, the inflation rate is not the issue. The issue is rising incomes. Incomes have to rise. Even if the inflation rate goes higher, as long as income rise, this is absolutely fine. And incomes need not necessarily come from government jobs. So I am asking you this, Abhishek Tripathi sir, is the private sector or subcontractors or other people creating employment as they ought to in India? Tripathi sir? Rajiv ji, can you come again with that question? मैंने आपको ये बोला कि जरूरी नहीं है कि जॉब्स जो हैं, नौकरियां जो हैं, वो सिर्फ सरकारी नौकरी हों. जो प्राइवेट सेक्टर है वहां पर भी नौकरियां क्रिएट होनी चाहिए. आपको क्या लगता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में और अन्य सेक्टर्स में जो मिक्स सेक्टर है,
जहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं वगैरह वगैरह मिलते हैं, क्या वहाँ पर लोगों को काम मिल रहा है आजकल? आप बताएं सर, त्रिपाठी साहब। बिल्कुल, जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला गवर्नमेंट इज लिमिटेड, बट प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे कंट्री का इन टर्म्स ऑफ जी जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। जी तो ये जो समन्वय है सरकार का और प्राइवेट लोगों के साथ, ये जो मोदी जी ने बना के रखा है इतने सालों से, जो बहुत जरूरी होता है, जिसको जिसको लोग सूट बूट की सरकार बोल देते थे पिछले कई सालों पहले। तो आई थिंक ये एक होमवर्क किया है मोदी जी ने, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ, सो दैट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट बहुत हो। इस वजह से उन लोगों को भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, सो दैट दे कैन ग्रो। इफ दे ग्रो द एम्प्लॉयमेंट ग्रोज। आई थिंक इट्स डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये एक चीज है जो भारत में बहुत अच्छी चल रही है, और हमने पिछले साल भी देखा था, जो डेटा आया था जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स का था, वो बहुत ही हाई गया था, बहुत ही अच्छा गया था। और आने वाले समय में इस चीज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लाइक आई सेड बिफोर, it's never easy to generate employment, but the employment is being generated very nicely in India, not just in government but in private also. त्रिपाठी साहब, आज अशोक चौहान made a statement that बोलते हैं महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज लाइक इंडियन प्रीमियर आईपीएल जैसे। बोले कि महाराष्ट्र पॉलिटिक्स इज आईपीएल। बोले प्लेयर्स का ऑक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी आज कौन, भुजबल इधर कल भुजबल उधर, अजित पवार इधर कल अजित पवार उधर, various, बोले कि this has become more of a diminishing values in Maharashtra politics. That's what Ashok Chauhan said. How serious is, because what we are seeing the same thing. जो नहीं हो रहे थे वो हाँ हो रहे थे, जो कल impossible थे वो आज हो रहा है। तो how do you see, is the moral values in Maharashtra politics declined like never before in the history of Maharashtra? Is Ashok Chauhan right when he says that? Pradeep ji, in reply to his question, I have a question for Ashok Chauhan. Can he file an affidavit in the court of law and say that he will not leave Congress in the near future? So by he's joining next year? BJP. No, I'm just He's saying. going I'm to just join. saying. Can he say that if he's questioning that Maharashtra politics is like a auction is happening like IPL? Can he swear on his heart, cross his heart, go to the court, file an affidavit that I will never join any other party but be in Congress till my last breath? No, he will not be able to do that. So I think putting up this kind of question in the public to defame the government and the party, I think it is unethical and immoral more than anything else. I think if you're putting up this kind of question, your video will come just in case you join any other party. I'm not saying you're joining BJP, but I think you should be careful with your words. तो आपके मुताबिक अशोक चौहान साहब शायद कांग्रेस में आ सकते हैं? ना, अशोक चौहान नहीं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल ना, नहीं, मैं ऐसा मैंने ये बोलता सुना हूं। था कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। सुनने में अब ये गया तो है। अशोक चौहान जी ने अगर आज ऐसा पूछा है तो वही बताएंगे कि उनके मन में क्या है, बिकॉज वी हैव नो इंटरेस्ट इन बिजनेस टू थिंक व्हाट ही इज विलिंग टू डू इन हिज लाइफ पॉलिटिकली, बट यस, any kind of such accusation will come on his face if he does so. बजाज साहब पूछ रहे थे कि he is trying to say that it's an auction and you're not a set a price. क्या उनका प्राइस सेट नहीं हो गया? त्रिपाठी साहब, what is it? क्या बोले he says auction हो रहा है, सब लोग इधर से आप ऑक्शन करो, उसको खरीदो, साले आप हर auction। मतलब हर एक को खरीद रहा हूँ, मुझे मेरी बोली नहीं लगाई किसी ने, ये क्या हुआ? तो त्रिपाठी साहब ये तो नाइंसाफी है। ये क्या है कि अब अगर आप अपने को वैल्यू करना चाहते हो या डी वैल्यू करना चाहते हो और इस तरीके के स्टेटमेंट देना चाहते हो और आप उस कैटेगरी में खुद को डालना चाहते हो कि आई हैव नॉट बीन बॉट और आई एम विलिंग टू बी बॉट, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ शेम फॉर योर पॉलिटिक्स। तो त्रिपाठी साहब चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार स्टेबल है सर, स्थिर है? Absolutely. शिंदे साहब नाराज तो नहीं है? शिंदे गुट नाराज तो नहीं है आपके बिल्कुल मुताबिक? कोई गुट नाराज नहीं है। कल ही पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो न्यू इंडक्शन है इन द कैबिनेट, वो सब लोग साथ में हैं। शिंदे साहब बहुत अच्छे सीएम हैं। अभी हमारे पास दो कड़क अच्छे डिप्टी सीएम हैं। देवेंद्र जी हमेशा से अच्छा काम करते आ रहे हैं। सर असली सीएम तो देवेंद्र फडणवीस हैं सर, छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं? I don't mind saying that, but yes, the CM is Eknath Shinde ji. Sir, he's Deputy CM. I have no compunctions in saying that Mr. Devendra Fadnavis is the most honest politician I know in Maharashtra. Let me tell you this very frankly. आसपास कोई नहीं आता। Absolutely, and most आसपास कोई calibered नहीं also. आता। Yes. तो असली सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, बाकी सब तो चलिए ठीक है चलता है, लेकिन फिर भी आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अब तो सत्तार साहब से एग्रीकल्चर उठा करके आपने दे दिया धनंजय मुंडे को, मतलब ये आपको लग रहा है सत्तार साहब नाराज नहीं होंगे क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक व्हेन कोई एक चीज का फॉर्मेशन होता है
उसमें 2 से 3 टाइप के द पार्टीज होती हैं, एक आपस में समन्वय बन जाता है और अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर ये टीथिंग ट्रबल्स होते हैं जो शुरू के कुछ 2-4 दिन अगर हम सुने या हमें सुनाया जाए डायरेक्टली या कोई अपोजिशन बोले कि ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एलोकेशन होता है, और आने वाले समय में अगले हफ्ते से हम देखना, इसी हफ्ते से देखना शुरू कर देंगे कि बहुत ही स्मूथ गवर्नमेंट चल रही है और बहुत अच्छे से 2024 But it is का absolutely मुंबई- true. But it is absolutely true. You have very efficient people now in government. On that there is no Yes. doubt. You have Ajit Dada Pawar साहब, you have Sunil Tatkare, you have Dilip Valse Patil, you have Chhagan Bhujbal साहब. मतलब ये तो बड़े दिग्गज हैं साहब. लेकिन इनको कंट्रोल कौन करेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. मतलब ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी तो हैं, बट फडणवीस साहब कैनॉट डील विद एवरीबडी. क्योंकि They are all उनके mature. देखिए साहब They are ऐसा all है, क्योंकि उनके सामने पूरी बात सुनने सर, इन सब दिग्गजों के सामने बाकी लोग तो बच्चे हैं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. मतलब अगर देखा जाए तो मतलब देखिए टाइम बदलता है. जी. बच्चे और बड़े की बात नहीं है. देवेंद्र जी ने 2014 से 19 बता दिया था. मैं देवेंद्र कि फडणवीस बड़ा की बात कौन नहीं है. कर रहा हूँ. नहीं नहीं, मैं फडणवीस साहब बता की रहा, बात- मैं बाकी सबकी बात कर रहा हूँ. आपने कंट्रोल की बात की तो मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा कि जहाँ पे भी देवेंद्र जी हैं और वो सेंटर पॉइंट है, तो आई थिंक कंट्रोल ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो मतलब आपने देवेंद्र फडणवीस जी का काम और भी मुश्किल कर दिया. पहले ही बेचारे इतनी मुश्किल में पड़े हुए थे कि मतलब ये सरकार को अच्छी तरह कैसे चलाया जाए. अब कोई अगर जिम्मेदारी बखूबी निभाए और निभाता चला है सालों जी, साल, जी. और जिससे दिल्ली भी खुश हो, जिससे महाराष्ट्र की जनता भी खुश हो, तो आई थिंक उन पे जितना ज्यादा भार डालो वो उतना मुस्कुराते हुए संभाल लेते हैं. Right. And I think that's why he's lost weight also. He's looking very good. He's also lost weight. Wonderful. Right, Abhishek Tripathi साहब, thank you very much for joining us. Really a pleasure talking to you. नमस्कार सर आपको. Thank you so much and वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. अभी जो अभिषेक त्रिपाठी साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के अभिषेक त्रिपाठी, आप लोगों को ऐसा लगा, प्लीज सेंड योर कमेंट्स. आई रियली वुड लव टू रीड देम. यू कैन मेक देम एज कलरफुल एज पॉसिबल, बट डोंट मेक देम अब्यूजिव. मतलब गाली मत देना यार, ठीक है? बाकी सब ठीक है. तो बट do send in your comments. अपने comments जरूर भेजें on Nation Now. And at the moment with us from the Congress we have Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. वंदे मातरम सर, वंदे मातरम. Vande Mataram sir. I'm extremely sorry sir, I could not join yesterday. There was a big meeting of the PCC office bearers at the Mumbai Congress Committee. The first meeting of the newly appointed president of the Mumbai Congress, that is Varshatai Gaikwad. तो इसलिए मैं कल आ नहीं सका, डिबेट में ज्वाइन नहीं हो सका. तो सर क्या डिसाइड हुआ उसमें? सर सर क्या डिसाइड हुआ? सर डिसाइड ये हुआ है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र के हमारे सभी जो मुंबई के कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ता को एंथुजियास्टिकली उनको कहा गया कि आपको क्या करना है और आने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें लड़ना है, उसके लिए पूरी तैयारी करनी है. अकेले लड़ रहे हैं सर कि बतौर एमबीए लड़ रहे हैं? सॉरी, अकेले लड़ रहे हैं कि एमबीए के तहत लड़ेंगे? सर देखिए, हमारे कल 236 पीसीसी ऑफिस बेरर है. हर म्युनिसिपल वार्ड से एक पीसीसी ऑफिस बेरर रहता है. सो वो पीसीसी डेलीगेट सारे थे कल वहां पर, और उनमें से अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि हमें अकेले लड़ना चाहिए. राइट, दैट्स व्हाट आई थॉट. क्योंकि अगर उनको वो बोलते कि हमको कब मौका मिलेगा, अगर Correct. हम लोग यूनिटी में एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली. अगर हम लोग यूनिटी में लड़े, हमको 80-85 सीट्स आएगी, तो हम लोग बाकी के लोगों को हम लोग नाराज करेंगे. इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि वहां पर हमारे पूर्व प्रेसिडेंट भाई जगताप जी भी थे, चरण सिंह सप्रा जी भी थे, और वर्षाताई गायकवाड़ भी थी. सो इन सबके सामने एक बड़ा विषय बन गया था कि सभी डेलीगेट्स को समझाए कैसे. वो सभी लोग बोल रहे कि नहीं, हमको लड़ना है, हमको लड़ना है. 950 लोगों ने फॉर्म भरे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए. हमारे बूथ कमिटीज के लिए, बूथ जो बीजेपी में पन्ना प्रमुख बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ बूथ कमिटीज है. तो वो लोगों की इसके पहले मीटिंग हो जाएगी. अभी इसके बाद हमारे वार्ड प्रेसिडेंट्स की मीटिंग है. तो इस प्रकार से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा जो संगठन है, वो पूरा सा गैरडअप हो गया. और कल इतनी भारी बारिश होने के बावजूद हमारे पीसीसी डेलीगेट्स सब प्रेजेंट थे, ऑफिस बेरर्स प्रेजेंट थे, और उन सब ने तय किया कि किस प्रकार से पिछले कई वर्षों से मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और वो भ्रष्टाचार को किस प्रकार से हम लोग उजागर करें, उसके बारे में स्ट्रैटेजी बनाई गई. और हमारे जो नगर सेवक है, जैसे रवि राजा और हमारे बहुत सारे सीनियर
कॉर्पोरेटर्स है जी। उनको भी उसमें शामिल किया कि वो हमें ब्रीफिंग्स देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, इस प्रकार से ये फेल हुआ, इस प्रकार से महानगर पालिका का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं काम कर सका, वो सारा हमको बताया गया। You know, Soni Saab, Mallikarjun Kharge, the Congress, Indian National Congress today highlighted the very fact that Mr. Modi is going to US, he is going to the France, but he has not been able to curtail at home price rise, inflation, unemployment issues. तो मगर फडणवीस देव फडणवीस जी का कुछ और कहना है, बोले कि Mr. Modi is creating one of the greatest employment opportunities in the entire world. Agar employment hai, India will be creating the highest employment. Now that is Fadnavis's observation. तो एक है कि Mallikarjun Kharge says inflation is high, price rise is high, unemployment hai, various other issues. Fadnavis says nothing. We are going to generate the highest employment in the world, not India sir, world में सबसे ज़्यादा. तो how are you going to say? Because मोदी का जो काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, bilateral ties है, that is out of the world. It's going to benefit India in a huge way. How do you see it, Soni Saab? Sir, Devendra Fadnavis ji, if he is saying that so many employment opportunities are being created, Highest in the world. highest in the world, first yes, sir. Sir, I would request Devendra Fadnavis ji, being so, learned and very efficient person and good leadership, and he's well read and he's a good presenter, he should at least concentrate on our Maharashtra. See, there are hundreds, thousands of vacancies in the health sector. They are not employing. If we go little further at national level, 11 lakh vacancies are not filled in railways. Yes. So he should first concentrate in our Maharashtra first, and then he should look nationally and then go to the world. And 9 So- lakh in the Indian Armed Forces. Yes, sir. Sir, This was a figure sir, released again by Mr. Mallikarjun Kharge. everywhere the contractual system would not work, because it is the loyalty which matters. If a person is employed and he is there for the entire service, like 38, 40 years, he is loyal to the organization. He thinks that organization to be his mother institute. So instead of that, if we create, temporary basis, contractual, like, you give running the train on contractual basis, like in Mumbai, the BST buses are being run on a wet lease basis, on a leasehold basis, and there are temporary drivers. The maximum number of accidents which have happened in Yes, the correct. BST are through them. Yes. We are not blaming those poor drivers. It is, they have not been suitably trained. They have not been given any soft skill. They have not been given how to behave with the public. They just simply don't know. They are just out of the motor training school, and they have joined it. Also because they are teachers. not joining the BST Sir, also teachers. administration. There are, Pratibha, please correct me if I'm wrong. Yes, yes. 1.5 लाख के करीब टीचर्स हैं. वो Yes, अभी yes. अभी भी शायद टेम्पररी हैं, उनको परमानेंट नहीं किया गया. बिल्कुल. जहाँ तक मेरा ख्याल, उनकी स्ट्राइक भी हुई थी पिछले दिनों. और उसके अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉइज हैं, Yes, sir. वो भी अभी तक मतलब वेट कर रहे हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगी. तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपकी सरकार आ जाती है, मान लीजिए, तो क्या आप इन सब लोगों को परमानेंट करेंगे सर? सर, हम लोग बिल्कुल जिस प्रकार से ये बाकी के राज्यों में हम लोग जो हमारा थिंक टैंक और हमारा जो रिसर्च काम कर रहा है, और किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए. सर, दिस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट नेसेसरी गवर्नमेंट जॉब्स. सर, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा है, उसका सीधा जवाब दो ना सर. कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज जो हैं बेचारे, टेम्पररी एम्प्लॉइज हैं अभी तक, जो टेम्पररी टीचर्स जो हैं बेचारे, जिसकी वजह से नागपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी को हरवा दिया आप लोगों ने बतौर एज एन एमपी. आपने ये प्रॉमिस किया कि आप सब उनको परमानेंट करेंगे. आप परमानेंट करेंगे सर उनको, अगर आपकी सरकार आ गई? सर, हम लोग, सर, जिस प्रकार से हमने ओल्ड पेंशन की बातें की, और जहां हम लोग सरकार में आए वहां पर हम लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, उसी प्रकार से अगर हमने कहा है कि उनको, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अगर कहा है कि हम लोग उनको परमानेंट करेंगे और परमानेंट जॉब देंगे, तो बिल्कुल देंगे सर.
जी, so We stand but by our words. but Pradeep ji, I think you'd agree with me that the old pension scheme, I think, was the best thing that the That is Congress what should have done. everybody wants. I mean, That's what everybody wants. ये नई पेंशन स्कीम जो है अजीब, इतनी अजीबोगरीब है, किसी को समझ में नहीं and आती the है। Congress has promised. Yes. The Congress but has but promised. they but the Congress, देखिए साहब, हमारे हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इनफैक्ट नाउ कर्नाटका में भी प्रोसेस है स्टार्टेड कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको वापस लागू करने के लिए। So but I hope you do that everywhere. But where are you going to generate the money from? That of course is a separate issue. सर अभी एक डिस्कशन हो रहा था अभिषेक त्रिपाठी साहब से, भारतीय जनता पार्टी के, आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। सर क्या अशोक चौहान जी आ रहे हैं इधर, मतलब बीजेपी में? सर देखिए, इन लोग बीजेपी के लोग थोड़े थोड़े दिन से हमारे कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लेके, अलग अलग नेताओं का नाम लेके वो लोग एक हवा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कांग्रेस के सारे एमएलएज है वो इंटैक्ट है और वो कहीं नहीं जाएंगे, इसका मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। और जी। रही बात अशोक चौहान जी की, तो अशोक चौहान जी हिमसेल्फ हैज टाइम एंड अगेन टोल्ड, आई एम आई विल रिमेन कांग्रेसमैन एंड आई वुड बी इन द कांग्रेस। सो हमारे में से सर देखिए, ये सर एनसीपी ब्रेक होने के पहले अशोक चौहान जी का नाम चलता था। जी, चल रहा था। हाँ, तो सर लेकिन वो नहीं गए, तो सर ऐसा सर वो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर जो अभी, जैसा प्रदीप जी ने उनको कोट किया कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारें बन रही हैं, टूट रही हैं, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल आईपीएल ऑक्शन की तरह है, कि मतलब बोली लगाई जा रही है और लोग इसका Auction, रहे हैं। बोले कि auction हो रहा है सर, पॉलिटिशियन आज इधर कल उधर, भुजबल साहब कल इधर, तो क्या भुजबल साहब कल उधर। तो हमारे मित्र राजीव अशोक, जी- अशोक चौहान साहब, राजीव जी- सर अशोक चौहान साहब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। Rajiv ji and Pradeep ji, I am a born Maharashtrian. I am born in Mumbai. Okay, so I feel very sad, and I had joined politics with some ethics, some principles, and my Maharashtra being brought to such. See, we had heard Haryana, Ayaram, Gayaram, Bhajanlal, entire Durust ministry baat. coming and everything we had heard, but such kind of thing, like see, good old days, Bala Sahib Thackeray also used to say, 20%. राजकारण and 80%, 80% समाजकारण. So we and everybody, like when it comes to Maharashtra development, we all are progressive. It is a progressive state, and in this progressive state, BJP just want to remain in power. They have stooped so low, and they are telling big talks. At least they should walk the talk. लेकिन भरत सोनी साहब, ये आपको समझ में आया है क्या? ये सिस्टम आपको समझ में आया क्या? मेरी अभी तक समझ में नहीं आया कि एक तरफ सर ये शिवसेना, शिंदे साहब की जो सेना है वो अब आधिकारिक सेना है, इट इज द ऑफिशियल शिवसेना भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे आए, ये तो समझ में आता है, मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन एनसीपी भी वहां पर आ गई है, मतलब अजीत दादा पवार साहब, अभी शिंदे साहब तो उनके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि इन्होंने हमें काम नहीं करने दिया, ये हमारे पूरी बजट एलोकेशन हमारा ले जाते थे। और हाल ही में 70,000 करोड़ का जो आरोप है उनके ऊपर दोबारा लगाया गया, और तो और छोड़िए, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने लगाया, और उसके बाद अभी अजीत दादा पवार इधर हैं, या हो सकता है प्रधानमंत्री जी शायद शरद पवार जी की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जरा अजीब लगता है थोड़ा सा। आपको समझ में आया क्या ये? सर 70,000 करोड़ रुपया का स्कैम, और उसके बारे में वो जो बोले, उन्होंने बोला कि एनसीपी के लोगों का है। अब उसमें उनको ही बोलना चाहिए, क्लेरिफाई करना चाहिए कि वो अजीत पवार जी के बारे में बोल रहे थे कि वो शरद पवार जी के बारे में, क्योंकि शरद पवार जी को जब ईडी का नोटिस आने से पहले खुद चले गए थे कि मैं खुद चला आता हूं, एंड ईडी कुड नॉट आस्क हिम एनीथिंग। तो सर देखिए, मोदी जी बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, he has not yet come out of the election mode. He is always in an election mode. और आज कुछ बोला और थोड़े दिन के बाद वो that turns out to be something else. तो सर वो जो अभी देखिए, उन्होंने लाया था कि भाई अमृतकाल होगा। अब अमृतकाल कहाँ हो गया, अमृतपाल कहाँ चला गया पता नहीं, अमृतकाल से क्या प्रॉब्लम हो गया पता नहीं। लेकिन अजीत दादा पवार विद द बीजेपी, सर ये आपको समझ में आ रहा है क्या? छगन भुजबल साहब बीजेपी के साथ, दिलीप वलसे पाटिल साहब बीजेपी के साथ, सुनील टक्करे। एक तो आने वाले दिन सर, अभी देखिए सर, राहुल नार्वेकर जी जो सभा स्पीकर है जी, उनको नोटिस दे दिया गया है कि इतने दिनों में, उनको पहले दिया कि रीजनेबल टाइम के अंदर आपको इसके ऊपर डिसाइड करना है। वो रीजनेबल टाइम एक्सपेंडेड सो लार्ज दैट कोर्ट हैड टू अगेन टेल हिम
नाउ यू हैव टू डू इट बाय दिस सच ए डेट, नाउ द डेट इज बीन गिवन। तो उसके अंदर उन लोगों को, शिवसेना के लोगों को, शिवसेना के जो एमएलएज है, आइदर उद्धव ठाकरे फैक्शन और शिंदे फैक्शन, उनमें से उन लोगों को देना है उसके ऊपर जजमेंट कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि वो निलंबित हो जाएंगे। तो सर ये जब होगा तब ये भी पता चलेगा कि पवार, अजीत दादा पवार जी को जो फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला है, और उस फाइनेंस पोर्टफोलियो के खिलाफ भरत गोगावले और बच्चू कडू ये दोनों जन बोले थे कि हमारे ऊपर अन्याय होता है, और वही लोग अभी उनके साथ मिनिस्ट्री में है। तो बड़ा बड़ा सर हमें दुख भी होता है, लेकिन बड़ा मजेदार ये हो जो ये पूरा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो हो गया, वो किस प्रकार से काम करेंगे ये आने वाले दिन। सर वो सोनी साहब, आपके वोट शेयर जो पहले बोल रहे थे कि मोर देन 50% है, that the Mr. Modi and Fadnavis has been able to dismantle that, because 50%, 17% NCP, 16% कांग्रेस, 16% उद्धव ठाकरे, ये वोट शेयर था आपका। उद्धव ठाकरे जी के पूरे ग्रुप फूट गए, शरद पवार साहब के पूरे ग्रुप फूट गए। कांग्रेस इज इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम, टिल नाउ कांग्रेस इज इंटैक्ट, बट जो 40 आउट ऑफ 48 सीट्स का सर्वे प्रेडिक्शन था, it will not be the same, because you got mass OBC leaders out from on this side. Chhagan Bhujbal this side, mass OBC leader. Sunil Tadkare, mass OBC leader this side. Maratha leader Ajit Pawar this side. I mean, so you got the OBC Maratha community, all the top leaders coming onto this side, sir. पूरे वोट शेयर जो MVA के है, that's over, it's finished. How do you see it, Soni Saab? That's what the BJP says. प्रदीप जी, हम लोग महाराष्ट्र की जो जनता है, हमारे महाराष्ट्र की जनता है, वो लोग ये लोग जितना उनको मूर्ख समझते हैं उतने मूर्ख है नहीं सर। वो लोगों ने डिसाइड कर लिया है, और अगर आप देखेंगे सब जगह से, तो आप देखिए, मैं एक कॉमनर करके मैं बहुत जगह पे जाता हूं, मैं रेलवे ट्रेन में जाता हूं, बसेस में जाता हूं, ऐसे घूमता हूं, तो वहां आप सुनेंगे तो लोग इतने गुस्से में हैं इनके खिलाफ कि जो इन लोगों ने लोगों के सामने करके दिखाया, और जो ये लोग बोलते थे और उनकी करनी और कथनी, इसका दोनों का फर्क देख के आज लोग इनसे बहुत नाराज है सर। अगर आप, मैं थोड़ा सा आपको एक 15 सेकंड और लूं, और मैं आपको ये बताऊं कि 2004 के अंदर इंडिया शाइनिंग बहुत बड़ा चल रहा था जी, और इंडिया शाइनिंग इतना, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय थे, और हम लोग को ऐसा लगता था कि इंडिया शाइनिंग के तहत फिर से बीजेपी की सरकार आएगी। लेकिन सर देखिए, 2004 में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, और उसमें 10 साल वो सत्ता में रहे, गवर्नमेंट रही उनकी। तो सर ऐसे है ना, हमारे देश को यूं ही नहीं बोलते हैं कि द लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग को घर पे बिठा देते हैं, अच्छे अच्छे जो घर पे लोग बैठे होते हैं, जो सोच में भी नहीं रहते, उनको भी लाके सत्ता पे बिठा देते हैं। तो सर हमें गर्व है हमारे लोगों पे, हमारे जो मतदाता है, महाराष्ट्र के मतदाता है, वो काफी समझदार है, और वो लोग जब ये मौका उनको मिलेगा, जब अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, उन लोग उनको रास्ता दिखा देंगे सर। प्रदीप जी, Sorry, Saab, you know, digital India, you said India shining, but digital India is totally different. Mr. Modi not only made UPI payments in France, he said you can go and pay in rupees in France, UPI. Same thing is happening in United Arab Emirates, UAE में वही हाल होने वाला, UPI exchange, India. तो उनका boast है, you don't have to carry money with you when you come to India, you just need your mobile and you can move cashless all across. Mr. Modi boasts 46% of real-time transactions of the world is happening in India. That's a great digital revolution, digital India. UPI payment 126 lakhs crores. He says this is digital India. He goes on further to say digital India, poor downtrodden के पास जो सरकार के benefits, जो पैसे के subsidies पहुंच रहे हैं directly उनके account में 100% पहुंच रहे हैं. Then he compares to Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi ने खुद कहा कि मैं 100 रुपया बेचता हूं तो 10 पैसा 10 रुपया नीचे पहुंचता है, यानी only 10% is going to the real user. This is the transformation that Mr. Modi boasts about. Mr. Modi is boasting about the transformation, sir.
UPI again, it's going to be borderless. Sri Lanka in, Bangladesh in. So what are we looking at, sir? What a transformation. This is the post, this is Modi's India. Amrit Kal. Soni साहब कैसे आप मुकाबला करोगे? Pradeep ji, on digital, on computerization and digitalization, I would request you. I would like to say that these people are suffering a temporary memory loss or partial memory loss or dementia. See, when Rajiv Gandhi brought computers to India, the very same people who are taking 4 mobiles in hand and going and talking of digitalization, they opposed computerization, that it will lead to job loss. There were people from the BJP who took out a morcha in bullock cart, taking it to the Parliament House against computerization. And now if they are and at the same time, sir, if you see now also where Aadhaar cards are registered less in which state, who opposed Aadhaar card? See, Aadhaar card was opposed. One of the leader, I don't want to name, he said that Aadhaar card should be dumped into the Arabian Sea. The very same people are today talking to us about Aadhaar card. And So GST. same way, And digitalization, who is the person who brought this modernization, this computerization to India? सर वो आप बोल रहे हैं ना, सर वो आप बोल रहे हैं. देखिए, जो जर्नलिस्ट हैं, हम जैसे पत्रकार जो हैं, बाकी सब लोग जो हैं उनको याद है. बाकी लोगों को तो याद नहीं है ना, वो तो आपको याद दिलाना पड़ेगा ना, सीधी बात. सर, ये हम लोग लेकिन फैक्ट है सर कि आज की तारीख में जो मोदी जी बोल रहे हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हैं, देयर इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. 50% से ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, मॉनेटरी डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हैं वो हिंदुस्तान में हो रही है. ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है, मानते हैं. लेकिन बिल्कुल गर्व की बात है सर. जी, ये गौरव की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी नरेंद्र मोदी है ना सर, तो वही तो क्रेडिट लेंगे. अब ये तो आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, भाई हम लेके आए हैं इसको. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मुंबई का मेट्रो प्रोजेक्ट है, ये आपका प्रोजेक्ट है, मानते हैं, लेकिन इतनी देर तक इसमें कुछ हुआ नहीं. सीधी सादी बात है ना सर. तो आज की तारीख में जो भी सत्ता में रहेगा, वही शख्स जो है उसका सेहरा तो वही पहनेगा ना. लेकिन जहां तक आपका सवाल है, आप ये बताएं, जैसे आपने कहा, टू कम बैक टू व्हाट यू सेड राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द शो, कांग्रेस विल फाइट the corporation elections alone, and I think that in my personal opinion that's a great idea, because जो बेचारा कांग्रेस का वर्कर है, जो जितने साल उसने लगा दिए कांग्रेस में अपना खून पसीना बहा करके, उसको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा कब मिलेगा? अगर यहां पर भी आप अलायंस में जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला. जिसकी वजह से लेकिन क्या लोकसभा का चुनाव और असेंबली इलेक्शन का चुनाव वो भी आप अकेले लड़ेंगे? ये सवाल ये उठता है. कॉर्पोरेशन में तो चलो ठीक है, हो सकता है आप जीत जाए, हो सकता है आप ना जीते, मुझे मालूम नहीं है, आगे वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन एंड बाय द वे, यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग आल्सो, बिकॉज वी हैव सीन कांग्रेस हैज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर मुंबई, स्पेशली बीएमसी इलेक्शंस के लिए. मैं कहता हूं, अगर आज कांग्रेस सच्चे दिल से, बहुत अच्छे तरीके से, ऑनेस्टली सभी कांग्रेसमैन इकट्ठे होकर के, नॉट लाइक व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, पिछली बार तो कांग्रेसियों ने ही एक दूसरे को सैबोटेज किया, उसके बावजूद आपकी 35 सीटें आ गई. अगर आप लोग सिंसियरली काम करते तो आपकी 60-70 सीटें कहीं नहीं गई थी बीएमसी में. And I'm saying it again and again and again. You want me to name the people also who sabotaged you? Some of them are in the BJP right now. I can name them also. लेकिन क्या विधानसभा में और लोकसभा में भी आप इकट्ठे लड़ेंगे सर? भरत सोनी साहब. राजीव जी देखिए, यू हैव गॉट ऑल दी, आपके पास जो सोर्सेस आपके हैं वो इतने तगड़े होते हैं कि आपके पास बिल्कुल लास्ट मोमेंट की भी इंफॉर्मेशन होती है. We know RKB, what RKB is, and all these years we have been knowing. Pradeep ji, RKB is such a person who will have lot of information, and his informers are in various parties also. So he would have the real pulse of the political parties. Exactly. But sir, the municipal corporation election also, it is the workers who have requested our high command, that is Pradesh, our Mumbai Regional Congress Committee President and the leaders,
that we want to fight it alone. Yes. At the same time, when replying back, Varshatai Gaikwad and Bhai Jagtap both said that suppose if our high command decides that we have to go in alliance, then we will have to go into alliance. The same logic applies for the Vidhan Sabha, that is assembly elections, and for the Lok Sabha elections also. If our high command decides that we have to go into alliance, we all, as a loyal Congress worker and as a loyal Congress candidates, we would abide by the decision of our high command, and we will go into the huddling and get back put our things straight, and we will fight unitedly. That is our final aim. We want these people, the party who have brought our democracy at stake, we want to defeat them, and we want लेकिन to एक चीज keep तो है them साहब, away from. भरत सोनी साहब, एक चीज तो है, जिस प्रकार आज की तारीख में राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार आज की तारीख में राजस्थान में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और तो और छोड़िए प्रियंका गांधी जी भी काम कर रही हैं वहां पे, मतलब मध्य प्रदेश में जबरदस्त हो रहा है काम अभी इस वक्त आज की तारीख में. इनफैक्ट आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस, मध्य प्रदेश में अभी एक बहुत गंभीरता से ये बात चल रही थी बीजेपी में कि मामा की सरकार हटा देनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान साहब को अलविदा कह देना चाहिए, उनकी निगाह में किसी और चेहरे को लाना चाहिए, हो सकता है कि हम जीत जाएं. बीजेपी बाय द वे हैज रिकंसाइल्ड इटसेल्फ टू द फैक्ट दैट दे आर लूजिंग मध्य प्रदेश. ये मैं आपको बता दूं, जहां तक स्टेट इलेक्शन का सवाल है. तेलंगाना में भी जिस प्रकार आप लोग काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार का एंथुजियाज्म, वो उत्साह, वो महाराष्ट्र और मुंबई में कब देखने को मिलेगा सर, वो जरा बताएं. सर देखिए, अभी आने वाले जो दिन है, अभी हमारे पास जो अभी ये जुलाई महीने के बाद जो अभी पहले अगस्त क्रांति दिवस आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट का 9 अगस्त हिस्टोरिक डे का आएगा, तब से हमारे सारे प्रोग्राम लाइंड अप है. हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जैसे ट्रक, पहले तो हम लोग बस में जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग हर विभाग में पदयात्रा करने वाले हैं. या ट्रक यात्रा, यस. ये ट्रक में भी जाइएगा सर और अपने आप ड्राइव कीजिएगा. आई वुड लव टू सी भरत सोनी ड्राइविंग अ ट्रक. बस यात्रा. नो बट दे व्हाट यू से राइट, नाना पटोले जी, वेणुगोपाल सब बैठ के जबरदस्त तरीके से उन्होंने पूरा प्लान किया है. तो सर मुझे तो ये लगता है प्रदीप जी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, और ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं कि एमबीए साहब, आप जो मर्जी कह लीजिए, यूनाइटेड है, ये है वो, एमबीए कुछ बची नहीं है. कांग्रेस शुड गो अलोन, और अगर आप अकेले लड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से टक्कर दे सकते हैं, हो सकता है आपकी सरकार भी बन जाए, ऐसा मैं मान करके चलता हूं. क्योंकि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने प्रोत्साहित किया है आप सब लोगों को, मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि कांग्रेस के वर्कर आप हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने प्रोत्साहित किया है वो बहुत जबरदस्त है. हाँ, हो सकता है उद्धव ठाकरे जी के साथ अगर आप अभी भी जाएं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे के जो जितने भी लॉयलिस्ट हैं शिवसेना के, वो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन एनसीपी के बारे में मैं वो नहीं कह सकता. आई डोंट नो अबाउट द एनसीपी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज अजीत दादा पवार साहब, छगन भुजबल साहब, सुनील तटकरे साहब, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, ये सब लोग वो शख्सियत हैं जिनको किसी, वेरी फ्रैंकली, इनको पार्टी और सिंबल की जरूरत ही नहीं है, अपने आप जीतते हैं लोग. मतलब इतने भारी भरकम नेता हैं लोग, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. आप इसके बारे में क्या कहते हैं सर? राजीव जी देखिए, हम लोग कांग्रेस वाले लोग, हम लोग हमारे अलायंस पार्टनर की आज थोड़ी परिस्थिति वीक चल रही है तो उसका फायदा लेके उसको और खत्म करने वाले लोगों में से नहीं है. नहीं, खत्म कर ही रहे सर, आप तो खत्म कर ही रहे सबको. पूरे मुसलमान वोट आपने इस तरफ ले लिया, पूरे सारा ले लिया, बचाइए, महिला, ओबीसी, दलित, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, सबको इस तरफ खींच लिया आपने. अब महाराष्ट्र में आपने तो प्रकाश अंबेडकर से डायरेक्टली बात करना शुरू कर दिया. प्रकाश अंबेडकर को भी साथ में ले रहे, तो ये नहीं, तो इस तरह बचेगा क्या? आप ये भूल गए कि प्रकाश अंबेडकर और उद्धव ठाकरे जी साथ में बात कर रहे थे, वेणुगोपाल जी डायरेक्टली बात कर लिया, उनको भी खींच रहे इस तरफ. सर यू ऑलरेडी डिस्ट्रॉयिंग. देखिए प्रदीप जी, मुझे राजीव जी ने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल राजीव जी ने क्वेश्चन पूछा कि एनसीपी के बारे में आपका क्या कहना है. देखिए सर, 83 साल के शरद पवार ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरा ये लेके जाओ, ये मेरा ले गया तो मुझे कुछ नहीं है. वो क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से पार्टी खड़ी करूंगा. वो ये नहीं बोल रहे कि मेरा सिंबल लेके गए, हाँ आप मेरे लोग लेके गए. सी, आप उनका थॉट प्रोसेस पढ़िए, उनकी आइडियोलॉजी पढ़िए. एट द एज ऑफ 83
ऑपरेशंस होने के बाद, ओरल माउथ कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ दिस हेल्थ, वो आज भी बोल रहे हैं। तो सर उसकी स्पिरिट को सलाम है। और अगर ये शरद पवार जी हमारे साथ है और उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ है, तो हमें हसन मुशर्रफ, भुजबल साहब, तटकरे जी, इनसे हमें कोई डर नहीं है सर। जी हमारे पास सर मुझे तो ऐसा लगता है, सर मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको इनसे डर नहीं होना चाहिए, इनसे तो बीजेपी को डरना चाहिए, जो बीजेपी ने उनको साथ में ले लिया है। डर तो उनको लगना चाहिए, क्योंकि भाई ये व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, एज ए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, अरे इनको कंट्रोल कौन करेगा? उधर तो शरद पवार जी थे, अरे इधर ये किसकी बात सुनेंगे? अजीत दादा पवार आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे की बात सुनेंगे? सर आप बताइए मुझे। सर इसीलिए सर मैंने एक थोड़े दिन पहले भी मैं जब ये शो पे आया था, मैंने कहा था कि जब ये महाविकास आघाड़ी बनी थी तब उद्धव ठाकरे जी वॉज नॉट द सीएलपी लीडर जी। उस समय पे एकनाथ शिंदे जी सीएलपी के, शिवसेना लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर एकनाथ शिंदे जी थे, हाउस लीडर एकनाथ शिंदे। उद्धव ठाकरे जी डिडंट वांटेड टू बिकम सीएम। वो वहां से दिल्ली से सोनिया जी, शरद पवार और संजय राउत जी ने जो स्ट्रैटेजी की, उसमें ये बताया गया कि किसी अगर ठाकरे फैमिली के घर के व्यक्ति को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो ये सब लोग उनका सुनेंगे, क्योंकि उस समय पे 3 मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान और ये सभी लोग उसके अंदर थे जी। वो तो इसलिए एक समन्वय, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार किस प्रकार से चली आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए सर उनको वहीं रहने दीजिए। और सर दूसरा क्या है, राजीव जी आपने तो देखा है, यू हैव बीन द जर्नलिस्ट ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशन, और आपने ये देखा है कि 77 में जो इंदिरा जी को छोड़ के गए थे वो 80 में फिर से आ गए थे जी। तो सर ऐसा कुछ भी हो सकता है 2024 के इलेक्शन के पहले। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक जो रूमर चल रहा है कि ये सारा का सारा शरद पवार जी का कराया हुआ है, ये इसमें कुछ सच है, कहने का मतलब ये हुआ? नहीं सर, ये यही बोल रहे हैं ना? नहीं, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा कि शरद पवार जी ने ही कराया है। ये हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में कि किसने कराया है, क्या हुआ और क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि पवार साहब ने जैसे पहले बोल दिया कि गुगली थी। सर इस बार तो सामने देवेंद्र फडणवीस जी ने बाउंसर फेंक दिया, वो गुगली तो खत्म हो गई। आपने इंदिरा जी के नाम लिया था, जेपी नड्डा बार बार कांग्रेस को याद दिला देता कि राहुल गांधी सिंह लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, यूएस में जाके कहा लोकतंत्र खतरे में, पूरे जहां भी जाते यूके में जाकर कहा लोकतंत्र खतरे में। तो आपने इंदिरा जी के नाम लिए, तो जेपी नड्डा जी एडवाइस कर रहे थे राहुल जी थोड़ा सीखिए आप, अगर लोकतंत्र को किसने घेरा है या खतरे में डाला है वो इंदिरा जी थे। इंदिरा गांधी बहुत इमरजेंसी। It is not the BJP. BJP has liberated this country. BJP has been guiding light where liberty is concerned. BJP has been a torchbearers of democracy and liberty. That's what BJP says. बोला इमरजेंसी को खतरा था तो कांग्रेस से खतरा था, and Congress has already done it earlier. They will do it now. That's what JP Nadda was telling people. How do you विरोध कैसे करोगे साहब? वो तो है सच्चाई बयान कर रहे हैं नड्डा साहब। सर देखिए, जेपी नड्डा जी इज ए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ द our opponent party. He should be remain president. He should not advise us, sir. और दूसरा, अगर राहुल जी जो इतने जिस प्रकार से वो लोग उनको राहुल जी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप उनको इग्नोर करिए ना। आप क्यों उनके सब शब्दों को क्या बोलते हैं, उसके ऊपर एक पूरी ट्रोल आर्मी खड़ी है सर। और उसके ऊपर राहुल जी खुद बताते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए और मेरा नाम खराब करने के लिए कितने करोड़ रुपए का फंड दे के वहां पर आईटी सेल काम कर रही है। सर अभी तो आपका आईटी सेल भी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है सर। आज हम लोग की आईटी सेल पवन खेड़ा जी, सुप्रिया सिनेट जी, रमेश जी के कारण बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन सर इसके पहले जो 7 साल 6 साल जो राहुल जी को प्रताड़ित किया गया, जो राहुल जी नहीं है वो उनको दिखाया गया। और सर देखिए, अगर इनको सर आपने भी तो किया, they were only returning the compliment। आपने भी तो कहा खून की
क्या खून की खेती, खून की होली, और ना जाने मौत के सौदागर, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या बोला बेचारे नरेंद्र मोदी जी को। तो ही वाज जस्ट रिटर्निंग द कॉम्प्लीमेंट सर। ऐसी क्या बात है? चाय वाला। और क्या है सर, क्या है उसमें और पॉलिटिक्स ऐसे चलता इधर है। हमारे कांग्रेस के मीटिंग में आके चाय का स्टॉल खोल दे नरेंद्र मोदी जी, एंड दैट रियली मेड द प्राइम मिनिस्टर। ही वाज योर फ्रेंड मिस्टर मणिशंकर अय्यर। अब क्या करें, सर, आपने फिलहाल ऐसे तो हम लोगों लोग को मोहब्बत की आपने दुकान ऐसे लोगों खोल को रहे पाल हैं, के रखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं सर? सर फिलहाल तो हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं सब जी, जगह जगह पे जाके। मैं उम्मीद ये करता जो हूं, hate- but hate it has इसको worked। खत्म कर रहे हैं हम लोग। सर आपकी मोहब्बत की दुकान ने तो जबरदस्त काम किया है सर। सर वो मतलब पुरानी बातें हम लोग सारी भूल चुके हैं, पुरानी बातें हम लोग अभी नहीं याद कर रहे। हम सर, लोग मैं आपको नए एक छोटी सी सिरे- बात बताता हूं। इमरजेंसी आप भूल नहीं सकते सर इमरजेंसी। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, चलते चलते। भरत सोनी साहब, छोटी सी बात है। यश चोपड़ा साहब वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यश चोपड़ा साहब फायर है फिल्म्स। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान मुझे बताया, बाकी सबको भी बताया, अकेला मुझे नहीं बताया, बाकी सबको भी बताया। उन्होंने कहा कि यार एक बार मैं अपनी गाड़ी में गया तो जू के ऊपर उस वक्त बड़े फिल्म के पोस्टर्स लगा करते थे, आजकल तो बंद हो गए, बिलबोर्ड हटा दिए वहां से। तो उन्होंने देखा कि हर जगह पर जितने भी हीरो हैं, हीरो सारे वही हैं, फिल्मों के नाम अलग हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर कैरिंग वेपन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। हर एक कोई वही फिल्म बना रहा है, मतलब वायलेंस वायलेंस वायलेंस। दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि मुझे वापस रोमांस और प्यार की फिल्म बनानी है। तो उन्होंने चांदनी बनाई, चांदनी सुपरहिट हो गई। मुझे लग रहा है आपने भी अब वही किया है, आपने अब ये तय किया है, अब आप प्यार की दुकान खोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे यशराज फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उनकी बड़ी सुपरहिट हो गई, वैसे आपकी भी सुपरहिट हो जाए। हमारी दुआ यही रहेगी सर। वायलेंस से ज़्यादा, हिंसा से ज़्यादा प्यार की दुकान चले, बहुत अच्छा है। आप इसी मार्ग पर चलते रहें। लेकिन ये तो बताते चलें, अशोक चौहान साहब ने कहा आईपीएल की तरह सबका ऑक्शन हो रहा है, तो अभी तक अशोक चौहान जी का ऑक्शन नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। हाँ सर। राजीव जी, हम लोग हमारे किसी भी नेता का आपने कहा वैसे ऑक्शन नहीं होगा जी। और हम लोग ऐसे उसमें कोई बिलीव नहीं करते। ऐसा है कि हमारा सर, कोई जाएगा सर नहीं। वी हैव ऑलरेडी रन आउट ऑफ टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव नेम्ड अ फ्यू पीपल हु हैव बीन योर कलीग्स। चलिए जाने दीजिए सर, बट ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू। कांग्रेस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, प्लीज कीप इट अप। नमस्कार सर और थैंक यू वंदे राजीव जी, मातरम। थैंक यू प्रदीप जी। नमस्कार, वंदे मातरम। इट वॉज प्लेजर कमिंग ऑन अ शो एंड थैंक यू। जय भवानी, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी सर। Thank you very much. Wonderful. I really hope that the Congress remains. And आप लोगों को एक बार फिर मैं आग्रह करता हूं, आप अपने कमेंट जरूर भेजें राहुल गांधी जी के ऊपर। जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को ट्रांसफॉर्म किया है, कांग्रेस को एक बार फिर पुनर्जीवित किया है, जागरूक किया है। आज की तारीख में जो कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है, वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, प्यार की दुकान, क्या वो चल रही है या नहीं चल रही है, चलेगी या नहीं चलेगी, ये आप लोग बताएंगे। प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स at the moment with us. Sorry, I think I've got a bad throat. Mr. Lakshman Hake. Lakshman Hake साहब, नमस्कार। सर आई कांट हियर यू, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अभी आई, थोड़ी सी आई जी। आ रही ना आवाज? अब फर्स्ट क्लास आ रही है, जबरदस्त आ रही है। लाइटिंग भी फर्स्ट क्लास है। और आज जबरदस्त लग रहे हैं साहब, क्या कुर्ता पहना हुआ है यार, मजा आ गया बिल्कुल देख के। आज मेरी पार्टी का ऑफिस है मुंबई में, शिवसेना भवन जी, वहां पर हैं आप। भवन में बैठ के मैं आपके साथ डायलॉग कर रहा हूँ। क्या बात है सर, वंडरफुल वंडरफुल सर। यस, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। यस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। जय भारत। लक्ष्मण आगे साहब, उद्धव ठाकरे साहब ने आदरणीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया नागपुर में। उन्होंने पहले वो दिखाया, वो जो क्या था, वो एक वीडियो था देवेंद्र फडणवीस साहब का कि एनसीपी के साथ करार, आगे जो भी उन्होंने बोला, ना ही ना ही ना ही ऐसा कुछ करके बोला उन्होंने। उसके बाद उद्धव ठाकरे जी ने कुछ कहा फडणवीस साहब के लिए, तो आपके मुताबिक क्या वो ठीक था सर? नहीं, सम्माननीय उद्धव साहब ने जो बात कही जी, वो बात 100% बराबर है। और महाराष्ट्र की जनता उसी तरह निगेटिव मूड में है अभी देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में, जिन्होंने लास्ट 3-4 वर्ष में महाराष्ट्र में जितने प्रयोग किए हैं, वो सब प्रयोग, वो जो शब्द प्रयोग किया है सम्माननीय उद्धव साहब ने, वो शब्द प्रयोग
उन्होंने जो 3 साढ़े 3 साल में जो जो कुछ किया है उसका वो आउटपुट है, और ये महाराष्ट्र की जनता पूरेपूर जानती है और मानती भी है। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ, आपके मुताबिक आप ये बताएं कि अभी तक तो वो 70,000 करोड़ का स्कैम बोल रहे थे एनसीपी को लेकर के, आज तो पूरी एनसीपी उनके साथ है। आज तो उन्होंने ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दिया कि 36 लोग हैं उनके साथ। 36 एनसीपी के जो एमएलए हैं वो तो साथ में हैं ही मतलब कि 16 इस तरफ हैं अभी, 16 के प्रदीप जी 18 इस तरफ कितना है मालूम नहीं, बिकॉज और भी फूटेंगे और तो भी फूटे। उस तरफ 36 है, 36 हैं ऑफिशियली। आगे साहब उस तरफ 36 है। तो मतलब 70,000 करोड़ का क्या हुआ सर, ये तो बता दो। 70,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है, डिफरेंट पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी, जी और इस देश में एक हिंदुत्व का विचार, राष्ट्रीयत्व का विचार, और वो घरानेशाही के अपोज में बातें करती है। Oh, I didn't see that. शिवसेना ने- Did you see that? Did you शिवसेना see ने that, प्रदीप जी? एनसीपी और कांग्रेस के साथ हिंदुत्व के बारे में तड़जोड़ किया और जी। उनके साथ गए, इसीलिए हमने शिंदे गुट को तोड़ दिया। ऐसे जो बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी बची नहीं। वो Can we have Mr. Lakshman Hake on full frame, please? I want to see that picture behind him. That's Bala Saheb Thackeray. Can we see him? बिल्कुल, that is Full fine. frame. Yes. अरे साहब, look at that. Beautiful. Look at that. That is Bala Saheb Thackeray right behind him. Wonderful. Yes. This is really lovely. क्या बात है सर, ये हुई ना बात कुछ, ये मजा आ गया देख के। तो सर अब ये सरकार चलेगी कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए साहब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सबका है, मतलब महाराष्ट्र की सरकार, भले आप ऑपोजिशन में हो, भले जैसे आप सेना में है, शिवसेना में है, बाला साहब ठाकरे की तस्वीर आपके पीछे है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये सरकार को अच्छी तरह चलना चाहिए, जो भी सरकार हो। महाराष्ट्र की सरकार है, महाराष्ट्र का भला होना चाहिए, लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये लोग चला पाएंगे? नहीं साहब, मुझे ये नहीं लगता है, क्योंकि महाराष्ट्र का अभी जो तरक्की चल रहा है, महाराष्ट्र का जो प्रोग्रेस चल रहा है, वो सिर्फ मुंबई और मुंबई के जो उपनगर है, उपनगर में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छी तरह से हो रहा है। एक कॉरिडोर है मुंबई, पुणे और संभाजीनगर, औरंगाबाद, और जो विदर्भ है, जो गढ़चिरोली, नंदुरबार, चंद्रपुर है, जो लातूर है, जो नांदेड़ है, वो पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र का विकास है, वो असमतोल विकास है। और ये असमतोल विकास अगर समतोल करना है तो ये अभी की जी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलरली डिसीजन ले रही है, पर्टिकुलरली लीडर्स चला रहे हैं, और ये पूरी महाराष्ट्र की तरक्की के बारे में ना उनके पास प्रोग्राम है, ना किसानों के बारे में प्रोग्राम है। अभी बारिश न होने की वजह एक हंगाम तो पूरा गया है, ना उनके ऊपर ये गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, ना कोई प्रोग्राम दे रही है, ना किसानों के बारे में बात कर रही है। ये सिर्फ बात कर रही है कि एक्सपांशन कब होगा, किसके साथ कितने गए, और किसने कैसी सरकार बनाई। ये जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है, अभी महाराष्ट्र की जनता टीवी देखना बंद कर रही है, इतनी उबक चुकी है इन पॉलिटिशियन के बारे में। हम शिवसेना की तरफ से सन्माननीय उद्धव साहब अभी विदर्भ में गए थे, हमारे सब पदाधिकारी, पूरे महाराष्ट्र की जनता डिस्ट्रिक्ट वाइज हम किसानों के पास जा रहे हैं, दूध उत्पादक शेतकरी किसानों के पास जा रहे हैं, और ये लोग तो सिर्फ सत्ता में है। और ये जो हाके साहब आज देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने ट्विटर में वो दिखा दिया कि कैसे फार्मर्स लोग उनके जो क्रॉप इंश्योरेंस, बीज बीमा, 1 रुपये में जो बीज बीमा मिल रहे थे उसको हाईलाइट कर दिया फडणवीस साहब ने बोला कि देखो फार्मर्स में हमने रेवोल्यूशन कर दिया है। फार्मर्स खुद उनको लिख के बोल रहे हैं कि जहां हमारे 5,000 10,000 रुपए इंश्योरेंस में चला जाता था, आज आपके सरकार के वजह से हम लोग 1 रुपये में इंश्योरेंस ले रहे हैं। हाके साहब, क्या ये बहुत डेवलपमेंट नहीं है फार्मर्स की तरफ? इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, बीज बीमा। हाके साहब नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, और तुम हमारे साथ चलो, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। 1 रुपए का बीमा की जो घोषणा कर दी है इस गवर्नमेंट ने, ये 1 रुपए का बीमा पर्क्युलेट करने के लिए 400-500 रुपए का खर्चा आता है। मैं क्या बोल रहा हूं,
₹1 का बीमा पर्कुलेट करने के लिए 400-500 रुपए का खर्चा आता है। तो मुझे बताइए कि ₹1 की घोषणा का क्या हो गया? ये सब चुनावी जुमला है। सर इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, ये समझ में नहीं आया। ये 400 रुपया क्या किसान को खर्चा करना पड़ रहा है या सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है? किसान को खर्चा करना पड़ रहा है। किसान को उनका अकाउंट होना है, अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस होना है, ये किसान को करना पड़ रहा है। मैं तो जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है क्या आपके साथ सर? जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं साहब ₹1 का बीमा, और ये बीमा, ये जो योजना है, ये योजना पर्कुलेट करने के लिए, नाम पर करके लेने के लिए ₹500 का खर्चा आता है। मैं कल इसका पर्टिकुलर और पर्ची आपको दिखाऊंगा Please. आपके चैनल पे, आपके शो पे। जी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज फडणवीस साहब तो जय जयकार कर रहे हैं। देखो किसान, और बहुत सारे किसान ट्वीट भी करके उनको धन्यवाद दे रहे थे कि हमारा 5,000 10,000 खर्चा होने वाला था, ₹1 में हमारा काम होगा। तो ये जो ट्वीट बार बार फडणवीस साहब अलग अलग फार्मर्स के दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे। तो इसलिए आप ये ट्वीट और ये जो प्रतिक्रिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल की प्रतिक्रिया है। मेरे साथ मेरे महाराष्ट्र के किसानों में जाएंगे हम। हमारा जो दूध का दर था, वो दर सिर्फ ₹1 सिर्फ बढ़ा दिया है। हमारी मांग थी 40 रुपए प्रति लीटर होना है, तो अभी 34 रुपीज प्रति लीटर इन गवर्नमेंट ने सिर्फ ₹1 बढ़ाया है। हमारी शिवसेना की तरफ से हम आंदोलन करेंगे, इस गवर्नमेंट को हम मोर्चा निकालेंगे, इस गवर्नमेंट को घेरेंगे। अभी बारिश न होने की वजह एक हंगाम तो पूरा किसानों का गया है। इसके बारे में ना देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं, ना एकनाथ शिंदे साहब बात कर रहे हैं, ना कृषि मंत्री बात कर रहे हैं, ना महसूल मंत्री बात कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता अभी इन लोगों से तरस आ चुकी है। ये तो फैक्ट है मेरे महाराष्ट्र की। सर अब ये बताएं कि ये जो टमाटर का जो अभी तो कीमतें बढ़ी हुई हैं, 200 रुपए, 220, 250, इसके पहले 4 महीने पहले आपको याद होगा टमाटर बिक रहा था 10 रुपए और 15 रुपए में, और जो ₹5 में, जी 5 रुपए में, और जो बेचारे किसान थे उनको टमाटर जो है फेंकना पड़ रहा था हाईवे के ऊपर। तो yes. आप मुझे ये बताएं इसका सोल्यूशन क्या है? और अभी क्या ये जो 250 रुपए में जो बिक रहा है, या 220 रुपए में जो बिक रहा है, या 200 रुपए में जो बिक रहा है, क्या इसका जो पैसा किसानों के पास पहुंच रहा है या सिर्फ बिचौलिए ले रहे हैं? सर ये ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं जी, जो तालुका कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, जो जिला कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, और जो अर्बन एरियाज में जो होटल को माल सप्लाई करने वाली जी लॉबी है, ये सब लॉबी है। ये लॉबी की वजह से इतना ग्राहकों को इतना रेट देना पड़ रहा है। ना ये किसानों के पास इतना रेट जाएगा तो किसान अच्छी तरह से तरक्की कर पाएगा। ये किसान का प्रोडक्ट है, मगर किसान को इतना लाभ कभी पहुंचता नहीं है। तो किसान को कितना ज्यादा है सर? ये मान लीजिए 225 रुपए में से किसान को कितना मिल रहा है? किसान को 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए मिल रहा होगा, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा है जी। तो प्रदीप जी, उद्धव ठाकरे जी 2 दिन पहले कहा कि जिस प्रकार से हर चीज चल रहा है, मुझे उद्धव ठाकरे जी का कहना है कि मुझे 1 नेशन 1 लॉ एक्सेप्टेबल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे एक बार एक्सेप्टेबल होगा, मगर अभी जो चल रहा है 1 नेशन 1 पार्टी हरगिज मंजूर नहीं है, और मैं इसका विरोध करता हूं। आई विल फाइट फॉर इट। ये जो टोटलिटेरियन डिक्टेटोरियल अप्रोच है, जिस प्रकार से पूरे रीजनल पार्टीज को डिस्ट्रॉय करना, तो क्या उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी यही देख रहा है कि एक देश एक पार्टी हो, ये संभव है, ये लोकतंत्र में बैठता है? बीजेपी का कहना ऐसा नहीं, उद्धव जी ऐसे। तो उद्धव जी का कहना क्या था? क्या ये तोड़ के सब लोग जो अभी एनसीपी, छगन भुजबल सब इस तरफ चले, अजित पवार गए, फिर उद्धव जी के पूरे एकनाथ शिंदे जी वहां पर गए, तो ये आगे जाके पूरे रीजनल पार्टी सब खत्म हो जाएगा और सिर्फ मोदी जी के बीजेपी? और कैसे देखते हो आगे सब, मतलब क्या था? नहीं, आप ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को वीक कर रही है। मतलब इस देश का जो संवैधानिक ढांचा डैमेज करने का प्रयास कर रही है। इस देश में 8 स्टेट में विरोधियों की जो सरकारें थी, वो सरकारें न्याय व्यवस्था हाथ में लेके, निवडणूक आयोग को हाथ में लेके, तोड़ मरोड़ के
आमिष दिखा के ईडी सीबीआई ये सब उनके पीछे लगा के 8 स्टेट में विरोधियों को कमकुवत बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। अगर जो अपोजिशन पार्टी अगर वीक बन जाती है तो इस देश में एक पार्टी बना रहे हैं, ये लोकशाही तत्वों के अपोज में है। अगर ऐसा बन जाता है तो हम हुकुमशाह की तरफ जाएंगे। हमारा जो कॉमन मैन को जो राइट्स है, जो पावर्स है, वो वीक हो जाएगी और ये कल कुछ भी कर सकते हैं, जैसा रशिया में हो चुका है, जैसा चाइना में हो रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा एक देश की जो आइडेंटिटी है, देश का जो लोकशाही तत्व है, देश के जो पूरे वर्ल्ड में जो एक आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी डैमेज हो जाएगी। इसीलिए हमारे उद्धव साहब ने ये बात कही थी। जी तो हाके साहब, अभी आप शिवसेना, उद्धव जी शिवसेना, आपका कहना है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, फार्मर्स का हक हो ही नहीं रहा है। मगर फडणवीस साहब ने आज कहा कि मोदी साहब के माध्यम से हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में इंडिया सबसे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले हैं। जो मोदी साहब यूएस, यूके, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया, G7 सब जगह जो दौरा किया है, बायलैटरल टाइज किया है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेक इन इंडिया है, एंड इंडिया विल बी द हाईएस्ट जॉब क्रिएटर इन द वर्ल्ड। सर हाके साहब, ये एक एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूं। ये एग्जाम्पल ऐसा है, मेरा भारत देश और ब्रिटेन और भारत देश में मैं एक थोड़ा कंपैरिजन करता हूं आपके सामने। हमारा जो दरडोई उत्पन्न है, ये उत्पन्न ब्रिटेन से 35% कम है और ब्रिटेन के बराबर हम दरडोई उत्पन्न बढ़ाने के लिए हमें 103 साल लगेंगे। अभी का जो रेट है ना, ग्रोथ रेट है ना, 103 साल लगेंगे। तो ये क्या, कौन सी बात है? ये चुनावी जुमला है, ये सिर्फ बातें ही कही जाती है, मगर ये फैक्ट नहीं है हमारे देश की। लेकिन ये बताएं लक्ष्मण हाके साहब, अगर हम लोग आज की सरकार की बात करें, आज सरकार में, जैसे मैं हर एक को पूछ रहा हूँ आजकल ये, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले क्या हुआ था। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनाए गए और उन्होंने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री का पद इसलिए स्वीकार किया क्योंकि आदरणीय शरद पवार जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनको कहा कि भाई देखिए, कांग्रेस में दो मुख्यमंत्री हैं, यानी अशोक चौहान साहब और पृथ्वीराज चौहान, और शरद पवार जी ने कहा जैसे हमारी तरफ अजीत दादा पवार हैं, छगन भुजबल साहब हैं, ये सब लोग बड़े सीनियर लोग हैं, ये आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की बात नहीं सुनेंगे, उनके अधीन वो काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मुख्यमंत्री बनिए ताकि एमडीए सरकार अच्छी तरह चल सके। आज वही एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद के तहत उनके अधीन होकर के अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये कैसे हो गया? क्या आप अजीत दादा पवार को एकनाथ शिंदे साहब बहुत सीनियर दिख रहे हैं कि बड़े रिस्पेक्टेबल हो गए कि मुझे इनके तहत काम करना है? नहीं, ये बात ऐसी है, ये फैक्ट ऐसी है। सिर्फ अजीत दादा तो सरेंडर हो चुके, वो छोड़ो बात, मगर देव फडणवीस साहब भी सरेंडर हो चुके ना। देव फडणवीस को वापस आना था, मी पुन्हा येईन, मगर वो पीएसआई से, अधिकारी से वो हवलदार बन के वापस आ गए। और वापस आते वक्त एक एनसीपी का और शिवसेना का, वो दो लोगों को लेके आए। और अभी क्या है, कैसा है, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस पूरा गया है। भारतीय जनता पार्टी का खुद का जो कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व शून्य है। ये सिर्फ ओन क्रिएटिविटी पे इस देश में, इस महाराष्ट्र में चुनाव जीत नहीं सकती है। इसलिए कल शिंदे गुट को फोड़ा था, आज अजित पवार साहब को उन्होंने साथ में लिया है, कल और कौन सी पार्टी पे ऐसा प्रयोग हो सकता है? ये अपोजिशन में जो अच्छे लोग हैं, हमेशा चुन के आते हैं, हमेशा उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी में, उसको ईडी, सीबीआई, इन सबको डरा के वो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में लेना चाहती है। उनका जो टारगेट है वो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण हाके साहब, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूं
मेरा जो तजुर्बा है वो काफ़ी लंबा है। वैसे बाय द वे मैं देवेंद्र फडणवीस जी को जानता हूँ अच्छी तरह, उद्धव ठाकरे जी को तो जानता ही हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी वैसे अगर देखा जाए उनका जो करियर है, बड़े अपराइट आदमी हैं। वो ये जोड़ तोड़ की राजनीति ये सब वगैरह 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 पहले नहीं करते थे, और मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है कि ये अजीत दादा पवार को इधर लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि दिल्ली से उनको हुक्म आया होगा कि ये करना ही है। आपको क्या लगता है, आप बताएं सर। नहीं नहीं, ये जो एनसीपी के जो सब लीडर्स गए हैं, ये लीडर्स अभी तक आज तक उनकी पूरी पॉलिटिकल जो कारकिर्द है, ये कारकिर्द 30 साल 40 साल से चुन के आ रहे हैं। वलसे पाटिल, छगन भुजबळ, वो हसन मुशर्रफ, ये सब लोग फुले शाहू अंबेडकर पुरोगामी विचार, इस देश का जो एक निधर्मी गवर्नमेंट चाहने वाले लोग, फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेने वाले लोग, अल्पसंख्यक, दलित, ओबीसी, विजयंती, इन सब लोगों के बारे में गला निकालने वाले लोग, हिंदुत्व को हमेशा सुबह दोपहर शाम को हिंदुत्व, भारतीय जनता पार्टी, मनुवादी, ब्राह्मणवाद, इन सब लोगों को गालियां देने वाले ये सब लोग अचानक इनके साथ में जाके गवर्नमेंट बनाते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता को अच्छा नहीं लगा है। महाराष्ट्र की जनता इन लोगों को, छगन भुजबल साहब रहने दो और कोई रहने दो, एक आध दूसरा उदाहरण छोड़ के इन सब लोगों को उनकी जगह दिखाएंगे। ये कैसा हो सकता है? ये बिलीव नहीं कर रही है महाराष्ट्र की जनता। जी हाके साहब, हाके साहब, आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि आखिर एकनाथ शिंदे को रिजाइन करना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे जी आज सीएम है, मगर आदित्य ठाकरे जी कह रहा है कि बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जी को रिजाइन करना पड़ेगा। फिर संजय राउत जी कहने लगा कि बहुत एकनाथ शिंदे जी ने रोकने की कोशिश की कि अजित पवार को जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया है उसे रोकने के विरोध प्रकट किया। पूरे एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने भी टॉप के मंत्री थे, लोग थे, लीडर्स थे, सब लोग ने बोले कि अजित पवार जी को फाइनेंस नहीं देना चाहिए। संजय राउत जी का कहना है एकनाथ शिंदे शायद दिल्ली भी गए थे उस विषय में, मगर हाईकमांड बीजेपी का कहा कि नहीं, ये होगा नहीं, आपको रहना है तो रहो, नहीं तो चले जाओ। तो जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे जी, संजय राउत जी बार बार यह कह रहा है कि एकनाथ शिंदे जी को आखिरकार रिजाइन करना पड़ेगा कि बिकॉज उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, और फिर जो बोल रहे कि एकनाथ शिंदे अजित पवार को अभी मुजरा करना, संजय राउत जी ने कहा कि मुजरा करना पड़ेगा दिल्ली में जाके। तो ये सब कैसे देखते हो हाके साहब? इज इट सो बैड फॉर एकनाथ शिंदे? बहुत सिचुएशन खराब है एकनाथ शिंदे जी के लिए अलायंस में। यस, खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये स्क्रिप्टेड है, और ये भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट के ऊपर विधानसभा के अध्यक्ष में बहुत जवाबदारी से बात कर रहा हूं। चाहे न्याय व्यवस्था भी रहने दो, निवडणूक आयोग भी रहने दो, ये पूरे मेरी महाराष्ट्र की जनता बोलती है, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं। मैं जनता की बात बोल रहा हूं। न्याय व्यवस्था रहने दो, निवडणूक आयोग रहने दो, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष रहने दो, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। अगर ये स्क्रिप्ट का लास्ट 1 ईयर में जितना भी इन्फ्लुएंस हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति पे, ये सब अच्छी तरह से देख लेते हैं, तो एकनाथ शिंदे साहब सीएम पद पे रहेंगे नहीं। अजित पवार साहब भी आ सकते हैं, और भी कुछ हो सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है 2024 की लोकसभा का चुनाव निकालना, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस करना, और आगे जाके विधानसभा इलेक्शन में शिंदे गुट अकेला लड़ेगा, अजित पवार गुट अकेला लड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी 288 पे सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी कमल पे चुनाव को आगे जाएगी, चुनाव लड़ेगी। ये स्क्रिप्टेड है। आज तुम लिख के रखो, चाहे अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये रिकॉर्ड होने वाला है, मुझे बाद में बता दीजिए। जी, कहने का मतलब ये हुआ, प्रदीप जी एक मिनट, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा जो स्क्रीन प्ले है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा इलेक्शन तक है। यस, और उसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। यस, सब अलग अलग हो जाएंगे। अगर अजित दादा पवार को 90 सीट देना है, 90 मतलब 90, एकनाथ शिंदे साहब को 50, 60, 70 सीट देने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे कहां? आज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां गए हैं? ना हमें चंद्रकांत दादा दिखते हैं,
ना हमें विनोद तावड़े जी दिखते हैं, जी। ना हमें पंकजा मुंडे वो तो सर, वो मैडम तो दिखती है। और ये कहाँ गए, कहाँ ये मुंडे महाजन? सर धनंजय मुंडे दिखते हैं ना, हाँ? धनंजय मुंडे दिख रहे हैं ना। धनंजय मुंडे दिखेंगे क्योंकि वो राष्ट्रवादी में गए थे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपोज में बहुत बड़ा काम खड़ा किया। जी। और भारतीय जनता पार्टी को तो अपोजिशन के लोग लेने हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अपोज किया, उन सब लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी की जो गंगा मैया है, इस गंगा मैया में ये इस वॉशिंग मशीन में पूरा व्हाइट वॉश देना है ये भारतीय जनता पार्टी। मगर 2024 के इलेक्शन में इस महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूरा व्हाइट वॉश देगी। आगे साहब, हम लोग वही देख रहे हैं, बिकॉज ये जो देवेंद्र फडणवीस कहां से उभरा, उन्होंने वो ऑपोजिशन लीडर जब थे और असेंबली में अजित पवार का जो एक्सपोज कर रहे थे, वो उनका यूएसपी बहुत बढ़ गया था, उसका कद बहुत बढ़ गया था फडणवीस साहब के। जब अजित पवार जी के खिलाफ उन्होंने पूरे एक्सपोजर किया था कि ये हो गया घोटाला, हो गया ये बैंक में घोटाला, हो गया इरिगेशन में होगा, तो एक जंग लड़ा था फडणवीस जी ने अजित पवार जी के खिलाफ, जबरदस्त असेंबली में हिला के रख दिया था। सेम भुजबल साहब के खिलाफ तो फडणवीस साहब हाई कोर्ट में पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, कंप्लेनेंट है, अलॉन्ग विद किरीट सोमैया और अलग अलग बीजेपी के टॉप के लीडर्स के सब लोग मिलकर भुजबल साहब के खिलाफ कंप्लेन, और भुजबल साहब ने शायद उसके लिए एक वजह से जेल भी जाना पड़ा। हसन मुशर्रफ, ईडी, बार बार घर पे पहुंचना, बार बार उनका इन्वेस्टिगेशन पे बुलाना, समन। तो ये आपको लगता है कि बीजेपी का रैंक एंड फाइल में क्या होता होगा, और देश का जो पॉलिटिकल वातावरण है, जो लोग इलेक्टोरेट है, वो कैसे इसको देखता होगा, कैसे देखता होगा साहब? सम्माननीय वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जो इलेक्शन को सामने जाते हुए उन्होंने फील गुड का एक प्रोग्राम लगाया था। फील गुड, पूरी इंडिया में फील गुड ऐसा एक प्रोग्राम लगा हुआ था उस टाइम। मैं तो उतना तो मैं राजनीति में नहीं था, मगर उसी तरह अभी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम फील गुड हो जाएगा। बचेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी। मैं ग्रास रूट पे अभी 6 दिन में मेरा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट और सातारा डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट में पूरा 6 साल में घुमा हूं, सुबह से 9 बजे से रात के 1-2 बजे तक। आज मैं मुंबई में आया हूं पूरा रात भर प्रवास करके। मुझे मालूम है जनता क्या बोल रही है, हर एक कम्युनिटी क्या बोल रही है, और 2024 में क्या परिणाम होगा इसका लिख के रखो आज। क्या परिणाम होगा सर, बताएं। यस, महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा नामो निशान मिटा देगी। और उसकी जगह पर कौन आएगा? उसकी जगह पे महाविकास आघाड़ी आ सकती है, उद्धव साहब आ सकते हैं। तो सर आपको नहीं लगता ये मराठा वोट अजित पवार जी, दिलीप वलसे पाटिल, ये बड़े बड़े दिग्गज नेता, मराठा नेता इस तरफ है, तो मराठा वोट इस तरफ और भी आ जाएगा? एनसीपी के छगन भुजबल, सुनील तटकरे जी, मास ओबीसी लीडर, मराठा ओबीसी लीडर, जो वोट कैलकुलेशन, तो ये क्या आप बोल रहे हो कि आपने हर जिला, हर वार्ड, हर तालुका में घूम के आए हो, तो ये ओबीसी और मराठा कम्युनिटी में किस प्रकार से दिग्गज नेता इस तरफ गए, तो क्या वातावरण है? आगे साहब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नरेशन आपके सामने रखता हूं। हाँ, मैं सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। मेरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में 40 शुगर फैक्ट्रीज है, 40। और मेरे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी आजी माजी आमदार, एमएलए, एमपीज और जितने भी बड़े लीडर्स थे, वो सब लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। उद्धव साहब के साथ, शरद पवार साहब के साथ, कांग्रेस के साथ एक भी आजी माजी लीडर नहीं है। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात आपके सामने रख रहा हूं। एक बाजू पूरे लीडर्स हो चुके हैं और एक बाजू पूरी जनता है। मैं बहुत जवाबदारी से मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं, मगर ये फैक्ट है महाराष्ट्र की। एक बाजू हर कोई नेता, हर कोई कॉन्ट्रैक्टर की जो लॉबी है महाराष्ट्र में, ये पूरी कॉन्ट्रैक्टर की लॉबी भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है। ये कॉमन मैन को समझते नहीं है।
ये कॉमन मैन के समझ में आएगी ये बात? लेकिन एक सेकंड, आप जो अभी कुछ बोल रहे थे वो पूरी आपकी बात नहीं हो पाई। आपसे सवाल मैंने पूछा था कि अगर बीजेपी शिंदे गुट और पवार गुट हारने वाले हैं तो उसकी जगह पर कौन आएगा, तो आपने कहा एमवी आएगी और उसमें उद्धव साहब की सबसे ज्यादा सीटें आ सकती सबसे हैं। ज्यादा सिंचाई। जी। यस। और जब ये लोग आपके मुताबिक अलग अलग हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 288 सीटों पे, पूरी सीटों पे लड़ेगी, तब क्या होगा बताएं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम रहेगा, वो शिंदे गुट के सामने भी रहेगा और सम्मानीय अजित पवार साहब के सामने भी रहेगा। ना उनको उनके निशानी पे और उनके गुट पे लड़ने देगी। वो बोलेंगे तुम्हारे ये जो सब सरदार है, सब वतनदार है, पैसे वाले मालदार लोग हैं, इन सब लोगों को कमल चिन्ह पे लड़ाएगी। और जो ओरिजिनल जनता है, ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का जो कॉमन मैन सालों से वो वोट करते आया है, वो पूरा उनके अपोज में जाएगा और ये पूरी महाराष्ट्र की जनता उनके अपोज में वोट करेगी। आगे साहब, ये बीच में संजय राउत जी ने कहा कि एकनाथ शिंदे जी सीएम के ऑफिस से जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं, जो जेल में हैं, उनसे कनेक्ट किया जा रहा है, कांटेक्ट किया जा रहा है। नॉट ओनली मुंबई, अलग अलग तहसील, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में जितने भी जेल है वहां से कनेक्ट किया जा रहा है। और संजय राउत साहब ने बोला था कि मैं प्रूफ दे दूंगा, आई गॉट प्रूफ दैट सीएम के ऑफिस से कनेक्शन हो रहा है कि इनको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाए, चुनाव में इनको इस्तेमाल करके एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस, अजित पवार, यानी अभी अभिजीत पवार जोड़ किया, तो इनको इस्तेमाल करके जीतने का प्रयास किया जाएगा। तो ये क्रिमिनलाइजेशन पहले था, आपने कभी विटनेस किया? आप तो ग्रास रूट से जुड़े हो, क्या गुंडे बदमाश लोग इफेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में रिजल्ट्स, नतीजा फेवर कैसे आपके साथ? मेरे महाराष्ट्र में ये बात नहीं चलेगी। मेरे महाराष्ट्र ये फुले शाहू आंबेडकर का महाराष्ट्र है और लोकशाही का पर्कुलेशन महाराष्ट्र में, मुझे गर्व है इस पे कि महाराष्ट्र में ये गुंडे और ये टेंडर्स वाले लोग, अरे ये बड़े बड़े लोगों को भी घर बिठाएगी ये महाराष्ट्र की जनता। जैसा पंजाब में पूरा परिवर्तन हो चुका, उसी तरह महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि देश की आबादी की लड़ाई भी पंजाब, वेस्ट बंगाल और मेरा महाराष्ट्र, इन 3 स्टेट ऐसे थे जो भारत की आबादी, भारत की जो आजादी की लड़ाई लड़ी, ये 3 स्टेट आगे थे, फ्रंट पे थे और इस देश को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के अपोज की लड़ाई, पंजाब में तो पूरा परिवर्तन हो चुका है, मेरा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल लोकसभा चुनाव में आगे आएगा और पूरे देश को दिशा देगा। और वैसे भी 9 अगस्त को ऑगस्ट क्रांति दिवस भी है। यस, क्रांति दिन है। इस क्रांति दिन में ये भारतीय जनता पार्टी के अपोज में ये मेरे महाराष्ट्र की जनता तो खड़ी रहेगी। सर आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे मालूम है प्रदीप जी एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बड़ा अहम सवाल है जो पूछने वाले हैं, उसके बाद क्या होगा, ये बात जो मैं पूछने वाला हूं ये मतलब मिट जाएगी, उसमें भूल जाएंगे हम लोग। क्या शिंदे साहब और उनका गुट वापस भी आ सकते हैं उद्धव जी के साथ? मुझे नहीं लगता। आप लेंगे नहीं या वो वापस आएंगे? नहीं, हमारे मातुश्री के दरवाजे तो बंद रहेंगे और एक आध दूसरा अपवाद छोड़ के ना शिंदे साहब वगैरह इन लोगों को, मुझे नहीं लगता कि मेरे मातुश्री के दरवाजे खुले रहेंगे। शिव सैनिक है, जो शिवसेना को फॉलो करने वाले लॉयलिस्ट शिव सैनिक है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और शिवसेना का संगठन बहुत मजबूत है और ये नहीं होगा, शायद नहीं होगा, आज तक नहीं हुआ है। आगे सब मोदी जी, आज के बीजेपी का मोदी जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन, जबरदस्त रेवोल्यूशन है। बोले कि डिजिटल इंडिया के वजह से आज मैं 100 रुपया जो किसानों को बेचता हूं वो किसानों के अकाउंट में जाके पहुंचता है, किसानों को मिलता है, किसानों को पूरे 100% बेनिफिट हो रहा है। डिजिटल इंडिया एक जबरदस्त, यूपीआई एक जबरदस्त रेवोल्यूशन है। पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, कैश लेने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपका चालू रहेगा, विदाउट कैश, कैशलेस आप घूमो। तो ये डिजिटल इंडिया आज वो बोस्ट भी करे कि पूरे देश विदेश में, पूरे दुनिया में 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है, मोदी जी का कहना है। तो क्या गरीबों को फायदा हुआ, शेतकरी को फायदा हुआ, कैसे नहीं? अरे नहीं साहब, अरे ये किसानों की तरक्की कब होगी
किसानों की तरफ की महालनोबिस का मॉडल पर्कुलेट होगा तब, किसानों की तरक्की कब होगी, एफआरपी मिलेगी तब, किसानों की किसानों की तरक्की ये कब नाम मैं 10 साल के मिलेगी? बाद सुन रहा हूं। क्या 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 मैंने कहा ये महालनोबिस प्लान जो थी, और महालनोबिस प्लान के बारे में ये 10 बरस के बाद किसी ने नाम लिया है। आपको साधुवाद, माई रिस्पेक्ट फॉर यू गोज अप सर। मैं आप जितना मेरे मन में आपके लिए आदर था वो 10 गुना और बढ़ गया है। जी बताएं सर, बोलिए प्लीज। ये महाराष्ट्र का जो मिल्क है, जी। मिल्क को भी प्रॉपर एफआरपी नहीं मिलता है। मालूम है सर। वो शुगर कैन मतलब ऊस महाराष्ट्र में बोलते हैं ऊस, गन्ना, जी। गन्ना को भी एफआरपी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। किसानों को अगर बारिश नहीं होती है तो बीमा नहीं मिल जाता है। नहीं मिलता। सिर्फ किसान की तरक्की नहीं हुई है। ये डिजिटलाइजेशन होने से किसान की तरक्की कैसी हो सकती है? अरे सर, किसान की तो बात छोड़िए, वो तो किसान है। जो लैंडलेस लेबरर, जो बेचारा फार्म में काम करता है, अरे साहब, उसके बारे में तो कोई वो बात मैं ही नहीं आगे कर की रहा। लाइन- ये आगे की लाइन आपको मैं बता देता हूँ। जी बोलिए सर। साहब, किसान को उनके अकाउंट में 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 का अनुदान जाता है। जी। मगर ये जो हमारे लेबर है ना, उनके नाम पे 7/12 है, लैंडलेस है, जी। उनका ना 1 रुपया का भी अनुदान नहीं मिलता है। नहीं मिलता। और वो जो पेंडेमिक पीरियड था, कोरोना का पीरियड था, उस टाइम इन लेबरों के ऊपर जो आप बीती थी, जी। इसका नरेशन हम भी नहीं कर पाते। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात है। और आज तक उनकी जो लैंडलेस लेबर, प्रदीप जी, लैंडलेस लेबर की जो स्थिति है पिछले 30 साल से 40 साल से बदली नहीं है, बिल्कुल वैसी। नो आके साहब, जो मोदी जी और बीजेपी का कैंपेन जो चल रहा है कि राजीव गांधी के जमाने में राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपया बेचता हूं तो 90 रुपया सिस्टम में खो जाता है, 10 रुपया पहुंचते हैं। बोले आपको इस चीज को मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा कि मैं जो 100 रुपया बेचता हूं, 100 रुपया फार्मर्स को मिल रहा है। जो 6,000 रुपया पीएम जो किसान है, उस किसान फंड के हिसाब से सब किसान के अकाउंट में पहुंच जाता है। स्टेट के तरफ से देव फंड में जो 6,000 बेचते हैं वो किसान को डायरेक्टली अपने अकाउंट में मिल जाता है। तो इसमें कुछ विवाद है क्या सर? साहब जीएसटी कितना इकट्ठा कर रहे हो आप? और ये किसानों को 5,000, 6,000 का मूल्य क्या है मार्केट में? पूरे 1 ईयर में आप 6,000 भेज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की किसानों के बारे में जो रणनीति है, उसका कभी कौन अभ्यास कौन स्टडी करेगा? हमारे देश में इतने कृषि विद्यापीठ है, मतलब फार्मर्स के बारे में यूनिवर्सिटीज है, उनके ऊपर इतना पैसा यूजीसी खर्च कर रही है, मगर हमारा जो किसानों का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आज भी काम नहीं हो रहा है। आज भी किसानों का जो कष्ट है, किसानों का जो श्रम है, इस श्रम को आज भी हमारा देश मूल्य नहीं दे पा रहा है। और जिस दिन तक ये परिस्थिति रहेगी, उस दिन तक हमारे देश की तरक्की नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में किसान है जी, लेकिन ये तो मैं कहता हूं ये हर एक कोई पहचानता है। सबसे बड़ी बात है नंबर 1। नंबर 2, आप लोकसभा का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, लोकसभा में जो लोग आते हैं, तकरीबन 65 से 70% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को फार्मर बताते हैं। ये कहते हैं हम सन्स ऑफ द सॉइल हैं। विधानसभा में भी देख लीजिए कुछ ऐसा ही हाल है। फिर ये लोग जब चुन करके आ जाते हैं, उसके बाद अपने गांव को क्यों भूल जाते हैं साहब ये जो मेरे लोकशाही का, मैं एक एक्टिविस्ट हूं। मेरे लोकशाही का लोगों की समस्या के ऊपर काम करने के लिए लोग हाउस में नहीं आ रहे हैं। खुद का बिजनेस, खुद का स्वार्थ और खुद की तरक्की करने के लिए ये हमारे लोकशाही का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी लोकशाही समाजवादी, मतलब कॉमन मैन की लोकशाही बची नहीं है। पूरे खेत से मैं आपके सामने ये बात कर रहा हूं। ये लोकशाही भांडवल शाह के हाथों में लोकशाही गई है पूरी। पैसा में से सत्ता और सत्ता में से पैसा। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट, मैं अगर आप क्योंकि आप शिवसेना कार्यालय में बैठे हैं इसलिए बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुने साहब मेरा सवाल। बाला साहब ठाकरे ने 1966 में 1966 में
शिवसेना शुरू करी, यस, उन्होंने शिवसेना शुरू करी तब उनका ध्यान जो था वो शहरों के ऊपर था। मराठी माणूस जो उस वक्त मुंबई मराठी में अस्मिता, मराठी अस्मिता मुंबई में, ठाणे में, अलग अलग शहर जो कोंकण के थे, ज्यादातर मुंबई में, कि किस प्रकार मुंबई में भी, पुणे में भी, नासिक में भी जो मराठी माणूस है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, उसके पास कोई काम करने के लिए चीज नहीं है। अब क्या वक्त आ गया है, पूरी बात सुन ले सर, मुझे मालूम है आप क्या बोलने वाले हैं। अब जो क्या वक्त आ गया है कि अब उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना को अब ग्रामीण महाराष्ट्र के बारे में भी वैसी ही एक क्रांतिकारी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन चलाना पड़ेगा। सर बताएं। यस, ये मेरा शिवसेना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके सामने रखता हूं। मुंबई, ठाणे, कोंकण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, थोड़ा सा मराठवाड़ा के कई डिस्ट्रिक्ट, ये शिवसेना पावरफुल है, पॉकेट्स है और अच्छी तरह से काम कर रही है, अच्छी तरह से संगठन है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मगर जो पश्चिम महाराष्ट्र है जहां पे ज्यादा से ज्यादा एग्री के जितने भी रिवोल्यूशन है वो सब रिवोल्यूशन पश्चिम महाराष्ट्र में है। ये पश्चिम महाराष्ट्र में जो किसान है, ये किसानों की समस्या शिवसेना अब शेतकी सेना, शेतकरियों की, किसानों की सेना हम बना रहे हैं। अभी हम दूध के बारे में हमने अल्टीमेटम दिया था, 1 रुपए बढ़ा दिया विखे पाटिल साहब ने। हम मराठवाड़ा में ये प्रोग्राम चला रहे हैं, हम विदर्भ में ये प्रोग्राम चला रहे हैं और पूरी शिवसेना 288, ये जो 288 विधानसभा कंसिस्टेंसी है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके हम किसानों के बारे में काम करेंगे। हम ओबीसी विजेएनटी के बारे में बिहाइंड कर्टन सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए उनके योजनाएं, उनके वसतिगृह, उनके एडमिशंस, उनके स्कॉलरशिप्स, इसके ऊपर भी हमने सेल बना रखा है, मतलब काम करने का प्रोग्राम बनाया है। आज मैं शिवसेना भवन में हूं। आज हमारे पार्टी के सचिव सम्माननीय खासदार विनायक जी राउत साहब, इनके साथ हमने इकट्ठा बैठ के अंबादास दानवे साहब के साथ बात करके हम अगले 8-10 दिन में किसानों के बारे में पूरे महाराष्ट्र में हम माहौल बना के रखेंगे और महाराष्ट्र पूरा 12-13 करोड़ जनता की समस्या हाथ में लेके शिवसेना आगे जाएगी। जबरदस्त, फैंटास्टिक प्रदीप जी, दिस इज रियली That's fantastic, फैंटास्टिक। it's great. क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कोई असल में मराठी अस्मिता के लिए लड़ने वाला शख्स, वो असल में सन्स ऑफ द सॉइल, जो सॉइल पे काम करते हैं। सन्स ऑफ द सॉइल तो साहब शहर में भी होते हैं ज्यादातर, अभी तक इंडस्ट्री के ऊपर और यूनियंस के ऊपर शिवसेना का जो था वो फोकस था। अब मुझे लगता है कि अगर क्रांतिकारी तरीके से सभी फार्मर्स को भी ऑर्गेनाइज किया जाए, संगठित किया जाए और लैंडलेस फार्मर्स का भी अगर ख्याल रखा जाए, उसके साथ में ओबीसी और बाकी सब लोग भी आपके साथ आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाला साहब ठाकरे का जो असली सपना था महाराष्ट्र के लिए वो साकार होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे है प्रश्न? जी आपको प्रश्न है। यस, महाराष्ट्र का समतोल विकास करना है। जैसा महाराष्ट्र मुंबई और पश्चिम महाराष्ट्र से ज्यादा जीएसटी भरता है महाराष्ट्र की तिजोरी में, वैसा अगर मराठवाड़ा, विदर्भ, ये इन सब समतोल विकास हो जाएगा। हमारे कोई भी इरिगेशन के भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जिस दिन पर्कुलेट हो जाएंगे तो महाराष्ट्र की तरक्की देश में और विकसित राज्य बन के आगे आएगा। और सम्माननीय आदित्य साहब का जो एक स्टडीज नेतृत्व है, ये नेतृत्व इनके साथ हमारे बहुत सारे चर्चाएं होती है। अगले 5 साल में, अगले 10 साल में सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जो बेडर लीडर थे, जो एक जबरदस्त लीडर थे, मगर उनके जो वारस है, ये वारस अभ्यासु लीडर, कोई प्रोग्राम लेके आने वाले लीडर, ये आगे जाके महाराष्ट्र का लीडरशिप सम्माननीय आदित्य साहब करेंगे और महाराष्ट्र की तरक्की भी करेंगे। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा चलते चलते एक छोटी सी प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी, 1 मिनट, छोटी। हाँ, ये सरकार कब तक चलेगी सर? मतलब शिंदे साहब कब तक रहेंगे मुख्यमंत्री, क्या लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट में जितना टाइम उनको दिया है जी। उतने टाइम तक ये शिंदे साहब चलेंगे।
अगर उसका टाइम आउट हो चुका है तो अगले 20 दिनों में भी शिंदे साहब आउट हो सकते हैं, अजित पवार इनकमिंग हो सकता है अजित पवार साहब का, नहीं तो देव फडणवीस भी इनकमिंग कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है इस महाराष्ट्र में ना नीति रही है, ना तत्वज्ञान रहा है, ना कोई राष्ट्रवाद बचा है। कौन कहां पे भी जा रहा है और कुछ भी कर रहा है। Right. महाराष्ट्र की जनता ने पूरा न्यूज सुनना छोड़ दिया है। आगे साहब, जो बजाज साहब आपसे बोल रहा था महानोबोलिस प्लान जो उस पर चर्चा होना चाहिए अगली बार। यस, करेंगे महानोबिस पे चर्चा करेंगे। जी। सम्माननीय वंदनीय स्वर्गीय शरद जोशी साहब का जो इकोनॉमिक्स था जी। वो शेतकरियों के बारे में, किसानों के बारे में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर भी। यस, ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी, यूएस की पॉलिसी, ब्रिटेन की पॉलिसी, कनाडा की पॉलिसी जो किसानों के बारे में है, उसके साथ भी हम क्यों कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतने बात करते हैं हमारी इकोनॉमी 5 नंबर पे, हमारी इकोनॉमी 6 नंबर पे। अरे सर आज की तारीख में जो कॉर्न फार्मर्स हैं, कॉर्न फार्मर्स इन एंड टोबैको फार्मर्स इन द यूएस, दे आर गेटिंग 70% सब्सिडी, 70% सब्सिडी मिलती है सर उनको यूएस गवर्नमेंट से। साहब जी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस अगले 2 साल का प्रोग्राम, 2 साल के पहले प्रोग्राम फिक्स होता है किसानों के बारे में। जी। अरे ये तो हमारा देश किसान 70% किसान है हमारे देश में। क्या चल रहा है ये 7.5% वगैरह वो अपना जो जीडीपी है ना, ये जीडीपी अगर ये सब लोग ओबीसी, बीजेपी, उसके ऊपर सर, उसके ऊपर अलग, सब ये जीडीपी के बाहर है सर। उसके ऊपर अलग से चर्चा करेंगे कि ये जीडीपी की ग्रोथ रेट कैलकुलेट कौन से बेस ईयर से हुई है। सीधी बात है, क्योंकि कोविड के अंदर क्या था कि डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, वो बेस ईयर अगर वो रखेंगे तो लिहाजा 7.5% ही आएगी। उसके पहले अगर 2004 से रखेंगे तो सर फिर 3% आएगी। सीधी बात है, क्या करोगे उसके नहीं साहब, मैं स्पीड की बात आपके साथ कर रहा हूँ। जिस दिन तक इतनी बड़ी आबादी है हमारे हाथ में, वो ये पॉजिटिव एनर्जी है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी को अगर काम नहीं मिलता है तो हमारे देश की तरक्की कैसी होगी? नहीं होगी। आज भी हमारे देश का जो रूरल एरियाज है, आज भी डिस्टिल्ड वाटर, मतलब वो प्रक्रिया किया हुआ अच्छा वाटर पीने वाले लोगों की संख्या 14% के आगे नहीं गई है जी। और वो भी असल में 14% है। स्कोप है, 14% है भी या नहीं मालूम नहीं। हाँ, आज भी हमारी हायर टेक्निकल एजुकेशन 12-13% के आगे नहीं गया है। आज भी हमारे लड़कियों का टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन 11% के आगे नहीं गया है। कौन से देश की बात कर रहे हैं आप? दुरुस्त बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर, नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भारत, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच सर। जय शिवाजी, जय न्यूज नेशन। हाय शाबाश सर। जय नेशन नाउ, न्यूज नेशन दूसरा नेशन नाउ, सॉरी नेशन नाउ। वो भी अच्छा चैनल सर, वो भी अच्छा चैनल है, ऐसी बात नहीं। सभी पत्रकार अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपने कहा सबसे आप अच्छे हैं, क्योंकि मुझे व्यक्त होने के लिए आप संधि दे रहे हैं सर। और दूसरी बात है, यहाँ पे हम लोग सच बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी ना कभी तो सच की जीत होगी। फिलहाल एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद। That was lovely. That was absolutely lovely, and it's always a pleasure talking to him. But by the way, what he said is the absolute truth. The fact remains, Pradeep ji, कि जहाँ तक रूरल इंडिया का सवाल है, the condition remains the same. I agree. Electricity has come, water has come. You've got television. Exactly. You got Wi-Fi. The 6.7% growth is not Pradeep for ji, rural areas. Pradeep ji, you even have mobiles. Yes. And everybody's very happy. Now, do you want to comment on what Mr. लक्ष्मण हागे said? लक्ष्मण हागे साहब ने ये कहा कि जब तक आप ग्रामीण भारत को आप शामिल नहीं करेंगे इन योर ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी, तब तक भारत का जो असली पोटेंशियल है वो आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपकी ग्रोथ रेट आज की तारीख में 7.02% है या 7.4% है या 6.7% है, तो वो 10 के 12% तक जा सकती है अगर आप ग्रामीण इलाकों को भी शामिल कर दें इसमें।
प्रदीप जी कुछ बोल रहे It's थे. a very interesting thing that he talked about. That's true. What he said that rural areas are not, they don't know about this 6%, 6.7% growth. Well, कौन सा growth? There's no growth there. And very interestingly, शोलापुर में विपक्ष, अपक्ष सब has joined the BJP. Yes. So except Mr. Sushil Kumar Shinde, everybody, you know, contractor से लेके छोटे मोटे leader से लेके everybody is joined the BJP. And that's the scene across Maharashtra, the way things are happening. So which means we're looking at a one-party system at some point of time. Right? I think we've got a couple of comments that we must look at. Let's take a look. जी दिखाएं. कुछ comments आप थे कुछ जी. That of course is our friend Mr. Lakshman Saji. All the educated and sensible people of India have realized that Uniform Civil Code is an election gimmick and all should reject it. I don't. I think there should be an Uniform Civil Code. And I think I'm educated, I'm not sure. Gee, but all the same, thank you for sending this. PM Modi, instead of solving the problems India is currently facing, has fled to France. Oh God, fled to France. He's been invited to France. I don't know who this person is. That's your friend Kishore Tiwari ji. Kishore Tiwari sahab, excellent discussion with Mr. Kishore Tiwari. There is Nadeem Mohsen, and I think this is the same Nadeem who used to be in Sahara, if I'm not mistaken. Right. Thank you so much, Nadeem. Please keep watching keep watching Nation Now. और आप अपने comment जरूर भेजें. जहाँ तक प्रदीप जी और मेरा सवाल है, we'll of course be back with you very shortly. That is on Monday. And in the meantime, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to it. And do send in your comments. I would love to read them out. Pradeep ji would love to read them out. And we would like to bring you as many views as possible from all sides. As you know, here we don't take sides. We take the side of India. That's it. हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तान सर्वोपरि है, उसके बाद हर चीज फॉलो करती है. जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है. That's it. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.